நாம் ஜெபிக்கலாம். हम प्रार्थना करेंगे। இந்த மாசத்தின் கடைசி ஓய்வு நாள்ல வந்திருக்கிறோம். इस महीने की आखिरी संडे को हम आए हैं। கர்த்தர் எவ்வளவு நல்லவராக கர்த்தர் 3 வாரமா நம்மோட கூட இருந்தார். परमेश्वर कितना भला बनकर इस 3 हफ्ता हमारे संग थे। எத்தனையோ விதமான போராட்டங்கள், कितने प्रकार की समस्या, எத்தனை விதமான பலவீனங்கள், कितने प्रकार की कमजोरता, பல விதமான எதிர்ப்புகள் கடந்து வந்தாலும் कई प्रकार के विरोध आया तो भी கர்த்தர் நம்மளை அதிகமாக ஆசீர்வதித்து வழிநடத்தி கொண்டு வந்திருக்கிறார். परमेश्वर ने हमें अधिक आशीष देकर हमें चलाकर आया है। இந்த வாரத்திலும் கூட इस हफ्ते में भी இந்த ஆராதனை மூலமாக इस आराधना के द्वारा உங்களை சந்திப்பதில் நாங்கள் மிகவும் சந்தோஷம் அடைகிறோம். आपसे मिलने में बड़े आनंद लगता है। நீங்கள் கர்த்தருக்குள்ளாக आप प्रभु में எப்பொழுதும் சந்தோஷமா இருக்கும்படியாக हमेशा आनंदित रहने के உங்களை लिए நாங்கள் கேட்டுக்கொள்ளுகிறோம். हम आपसे विनती करते हैं। கர்த்தர் எவ்வளவு நல்லவர். परमेश्वर कितना अच्छा है। இந்த மாசத்தின் கடைசி வாரம் इस महीने के आखिरी हफ्ता है நாம் இன்னும் கொஞ்சம் 2-3 நாளுக்குள்ளாக और हम कुछ ही दिनों के अंदर சோத்ரம் புதிய மாதத்துக்குள்ள நாம் பிரவேசிக்க போறோம். नए महीने में हम लोग प्रवेश करने जा रहे हैं। அக்டோபர் மாதத்துக்குள்ள நாம் பிரவேசிக்க போறோம். अक्टूबर महीने में हम लोग प्रवेश करने जा रहे ஆண்டவர் செய்த நன்மைகளை நினைத்து हैं। परमेश्वर ने किया हुआ भलाई को याद நம்ம எல்லாம் करते தேவனை हुए நோக்கி நம்ம பார்க்கலாமா? क्या हम सब प्रभु की ओर देखें? நீங்க எங்களோடு இணைந்து கொள்ளும்படியாக आप हमारे संग रहकर உங்களை நாங்கள் அன்போடு நாங்கள் கேட்டுக்கொள்ளுகிறோம். आप हमारे संग रहकर आपसे हम विनती करते கர்த்தர் हैं। நல்லவர். परमेश्वर अच्छा है। ஒருவேளை கடந்ததை நினைத்து शायद पिछला हुआ जो भी गुजरा था நீங்கள் उसे கண்ணீர் வடித்துக் கொண்டு இருக்கலாம். आप आंसू बहाते होंगे। ஒன்றும் கவலைப்பட அவசியம் இல்லை. आपको चिंता करना आवश्यक नहीं है। நடந்ததெல்லாம் நன்மைக்கு जो कुछ हुआ वो भलाई है। நன்றி நன்றி நம்ம சொல்ல வேண்டும். धन्यवाद करके प्रभु से कहना ஏதோ है। ஒரு காரியம் கடந்த நாட்களோ வாழ்க்கை நடந்திருக்கலாம். कुछ तो बात है जो बीते दिनों में आपके जीवन में நீங்கள் हुआ था। கண்ணீரோடு கூட இந்த ஆராதனை இன்றைக்கு பங்கு கொண்டு இருக்கலாம். आप आंसू के साथ इस आराधना में भाग लेते होंगे। ஆண்டவர் எல்லாவற்றையும் நன்மையாக அவர் முடிய பண்ணியிருக்கிறார். परमेश्वर सब कुछ भलाई तौर से करके ஆனா रखा கலங்க है। வேண்டிய அவசியம் இல்லை. आप चिंता करना आवश्यक नहीं है। கர்த்தர் நல்லவர். परमेश्वर अच्छे हैं। அலைகடல் போன்றதான एक तूफान समान நீங்க நடுவில் அமிழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறீர்களா? उसके उस जल के अंदर डूब रहे हैं क्या? அந்த கரம் நீட்டும் वो हाथ बढ़ाने वाले இயேசுவை நோக்கி நீங்க பாருங்க. उस परमेश्वर की ओर देखिए। அவர்தான் உங்களுக்கு கரை சேர்க்கும் துணையாக அவர் காணப்படுகிறார். वही आपको किनारा ले जाने वाला साथी சரியா? है। ठीक है। நம்ம தேவனை நோக்கி நம்ம பார்க்கலாம். हम प्रभु की ओर கர்த்தர் देखें। நல்லவர். परमेश्वर अच्छा Thank you है। Lord Jesus. Amen. கடந்ததை நினைத்து தினம் கண்ணீர் வடிக்கின்றாயோ? கடந்ததை நினைத்து தினம் கண்ணீர் வடிக்கின்றாயோ? நடந்ததெல்லாம் நன்மைக்கே. நன்றி நன்றி சொல்லு. நடந்ததெல்லாம் நன்மைக்கே. நன்றி நன்றி சொல்லு. ஆனந்தம் பேரானந்தம் என் அருளாத சமூகத்திலே. ஆனந்தம் பேரானந்தம் என் அருளாத சமூகத்திலே. போராடும் என் நெஞ்சமே புகலிடம் மறந்தாயோ? பாராளும் இயேசு உண்டு. பதறாதே மனமே. போராடும் என் நெஞ்சமே புகலிடம் மறந்தாயோ? பாராளும் இயேசு உண்டு. கலங்காதே மனமே. நடுவினிலே அமிழ்ந்து போகின்றாயோ? அலைகடல் நடுவினிலே அமிழ்ந்து போகின்றாயோ? கரம் நீட்டும் இயேசுவை பார். கரை சேர்க்கும் துணை அவரே.
எல்லாம் சொல்லலாம், படிக்கலாமா? மீட்டும் இயேசுவை பார், கரை சேர்க்கும் துணை அவரே. ஆனந்தம் பேரானந்தம் என் அருள்நாத சமூகத்திலே. ஆனந்தம் பேரானந்தம் என் அருள்நாத சமூகத்திலே. என் நெஞ்சமே புகலிடம். நீங்க மறந்து காணப்படுகிறீர்களா? இந்த உலகத்தை ஆளும் இயேசு உண்டு, பதறாதே மனமே. என் நெஞ்சமே புகலிடம் மறந்தாயோ, பாராடும் இயேசு உண்டு, பதறாதே மனமே. வருங்கால பயங்களெல்லாம் அனுதினமோ, வருங்கால பயங்களெல்லாம் வாட்டுதோ அனுதினமோ. அருளாத இயேசுவிடம் அனைத்தையும் கொடுத்து விடு, அருளாத இயேசுவிடம் அனைத்தையும் கொடுத்து விடு. ஆனந்தம், எல்லாரும் படிக்கலாமா? ஆனந்தம் என் அருளாத சமூகத்திலே. ஆனந்தம் பேரானந்தம் என் அருளாத சமூகத்திலே. என் நெஞ்சமே புகலிடம் மறந்தாயோ, பாராடும் இயேசு உண்டு, பதறாதே மனமே. என் நெஞ்சமே புகலிடம் மறந்தாயோ, பாராடும் இயேசு உண்டு, பதறாதே மனமே. ஆனந்தம், எல்லாம் சொல்லலாமா? ஆனந்தம் என் அருள்நாத சமூகத்திலே. ஆனந்தம் பேரா. உங்க வீட்டில் இருந்து கொண்டு உங்க சத்தத்தை உயர்த்தி ஆண்டோட சமூகத்தை நோக்கி நாங்க பார்க்கலாம். ஆனந்தம் பேரானந்தம் என் அருள்நாத சமூகத்திலே. ஆனந்தம் பேரானந்தம் என் அருள்நாத சமூகத்திலே. எதிர்கால பயத்தோடு வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறீங்களா? भविष्य का डर की वजह से क्या जी रहे हो? எதிர்கால வாழ்க்கை எல்லாம் आपके भविष्य सब அந்த இயேசுவிடம் ஒப்புக்கொடுங்கள். केवल उस यीशु मसीह के पास सौंप दीजिए, அவரிடம் சொல்லுங்கள். उसी के पास कह दीजिए। நண்பன் உங்களை கைவிட்டு விட்டார்களோ, क्या आपका मित्र आपको छोड़ दिए? நம்பினோர் எதிர்த்து விட்டார்களோ, जिस पर आपने भरोसा किया आपका विरोध हुए? கைவிடாத நம்முடைய தேவனின் जो हाथ नहीं छोड़ने वाला हमारा प्रभु, கரம் பிடித்து நீங்க நடக்க வேண்டும். उसके हाथ थाम कर आपको चलना வருகிற है। புதிய மாசத்துல आने वाले नए महीने में ஆண்டவர் கரத்தை பிடித்துக் கொள்ளுங்க. परमेश्वर का हाथ को आप थाम लीजिए।
எதிர்கால பயத்தோடு கூட இந்த மாசத்தின் கடைசியில் உட்கார்ந்து கொண்டு இருக்கிறீர்களா? भविष्य का भय से आप बैठे हैं क्या? எனக்கு இன்னும் எதிர்காலமே இல்லை, मेरे लिए अभी कोई भविष्य नहीं है, என்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு இன்னும் எதிர்காலமே இல்லை, मेरे बच्चों के लिए कोई भविष्य नहीं எனக்கு है, வேலையே கிடைக்காது, मुझे नौकरी नहीं मिलेगा। ஒருவேளை கலக்கத்தோடு இருந்து கொண்டு இருக்கிறீங்களா? शायद आप लोग डर के वजह से हो क्या? இந்த அருமையான ஓய்வு நாள் காலை வேளையில इस विश्राम दिन के सुबह के உங்க समय கலக்கத்தை மாற்றுவதற்காக आपका चिंता को दूर करने के ஆண்டவர் लिए உங்க வீட்டுக்குள்ளாக கடந்து வந்திருக்கிறார். परमेश्वर आपके घर पर आए हैं। அவரை நோக்கி நீங்க பார்க்க வேண்டும், आप उसकी ओर देखिए, அவர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். वो आपको आशीष देगा। உங்களை அதிகமாக நேசிக்கிற நல்ல பிதாவே உமக்கு ஸ்தோத்திரம். हमसे अधिक प्रेम करने वाले पिता आपको हम धन्यवाद இந்த देते அருமையான हैं। மகிமை நாளுக்காக நாங்கள் செபிக்கிறோம். इस महिमा के दिन के लिए आपको हम धन्यवाद देते நீர் हैं। மகிமையானவர் ஆண்டவரே, आप महिमा का परमेश्वर है, மகிமையின் ஜோதியாக இருக்கிறீர் ஆண்டவரே. आप महिमा की ज्योति हो। இந்த ஆராதனை வேளையில इस आराधना के समय உடைய மகிமையின் பிரசன்னத்தால் எங்களை நிரப்ப வேண்டும் என்று நாங்கள் செபிக்கிறோம். आपकी महिमा के तेज से हमें भर दीजिए। உடைய ஆளுகை இந்த ஆலயத்துல கடந்து வரும்படியாக நாங்கள் செபிக்கிறோம். आपका राज्य इस भवन में आ जाए, ஒவ்வொரு கூடாரங்களும் உடைய ஆளுகை இருக்கும்படியாக செபிக்கிறோம். आपका राज हर एक के घर पर रहे। உடைய நாமத்தை நாங்கள் உயர்த்துகிறோம் ஆண்டவரே. आपका नाम का ऊंचा இந்த उठाते हैं। ஆராதனை பகுதியில इस आराधना के भागों में, ஒவ்வொரு பகுதிகளிலும் हर एक भागों में உம்முடைய வல்லமை இறங்கும்படியாக செபிக்கிறோம். आपकी सामर्थ उतरे। இயேசப்பா, நாங்கள் எங்களை தாழ்த்துகிறோம். हम अपने आप को झुकाते हैं, எல்லா தடைகளை மாற்றுங்க. सारी रुकावट को दूर உடைய பிரசன்னத்தை நாங்கள் உணரணும். आपका प्रसन्नता तेज को हमें நாங்க महसूस இந்த करना நாட்கள் है। வெட்கப்பட்டு போக கூடாது. आज के दिन हम शर्मिंदी नहीं होना எங்களுடைய है। முகத்தை நீர் हमारे चेहरे को பிரகாசிக்க பண்ணும்படியாக நாங்கள் செபிக்கிறோம். प्रकाशित कीजिए। நாங்கள் நிமிர்ந்து நடக்க இந்த வாரத்துல கிருபையில கொடுக்கும்படியாக செபிக்கிறோம். हम सिर उठाकर चलने के लिए हमें आप मदद தேவ कीजिए। கரத்துக்குள்ளாக परमेश्वर के हाथों में இந்த ஆராதனையை इस आराधना உடைய में கரத்துல தருகிறோம். आपके हाथों में देते இதை हैं। பார்த்து கொண்டு இருக்கிற குடும்பங்களும் இந்த கரத்துல தருகிறோம். इसे देखने वाले आपके परिवार को हाथों में देते இந்த हैं। ஆராதனை பங்கு கொள்ளுகிற உடைய வாலிப பிள்ளைகளை ஆசீர்வதிப்பீராக. इस प्रार्थना में भाग लेने वाले आपके जवान बच्चों को भी आशीष எந்தெந்த दीजिए। பிள்ளைகள் மொழிபெயர்க்கிறார்களோ जो बच्चे ट्रांसलेट करते அந்த हैं, பிள்ளைகளுக்கு தேவ ஞானத்தை கொடுக்கும்படியாக செபிக்கிறேன். परमेश्वर का ज्ञान उन्हें देने के लिए आपसे विनती பாட்டு करते हैं। படிப்பதற்கு நல்ல ஞானத்தை கொடுங்கப்பா. गीत गाने के लिए अच्छा परमेश्वर ज्ञान அவங்க दीजिए। குரல் வளையை தொடும்படியாக செபிக்கிறேன். उनके सुर ताल को आप छू நல்ல लीजिए। பிள்ளைகள் பாட்டு படிக்கணும், बच्चे अच्छा गीत गाना है, சத்தமாக பாட்டு படிக்கணும் ஆண்டவரே. आवाज उठाकर गीत गाना है, பிரசன்னத்தோடு பாட்டு படிக்கணும். आपका तेज से गाना அப்படி है। கிருபையில கொடுக்கும்படியாக செபிக்கிறேன். ऐसा अनुग्रह दीजिए। தேவ நாம தொடர்ந்து மகிமைப்படும். परमेश्वर का नाम लगातार महिमा எங்களை हो। தாழ்த்துகிறோம். अपने आप को हम झुकाते, நீங்க பெருகணும், आप बड़े, நாங்கள் சிறுகணும். हम घटे, எங்களுக்கு ஒன்றுமில்லை. हम पर कुछ भी இனி नहीं। நான் அல்ல, अब मैं नहीं, கிறிஸ்துவே मसीह எனக்குள் பிழைத்து இருக்கிறார் என்று பவுல் சொன்னது போல मुझ में जीवित है करके पौलुस நீர் कहता எங்களுக்கு है। பிழைத்து இருக்கிறேன். आप हम में जीवित हो। எங்களை தாழ்த்து ஆசீர்வதியும். हम अपने आप को झुकाकर आशीष करते हैं। இயேசுவின் மூலம் ஜெபம் நல்ல பிதாவே. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, ஆமென். आमीन। அல்லேலூயா. हालेलुया। கர்த்தர் நல்லவர். परमेश्वर अच्छा है। நம்ம இப்ப ஒரு சில பாடலை படித்து हम कुछ गीत गाकर தேவ நாமத்தை நம்ம உயர்த்துவோம். परमेश्वर के नाम की ऊंचा அவரை उठाएं। பாட்டினால நம்ம துதிக்க போறோம். अब अभी उनके गीतों के द्वारा उसकी महिमा करने நீங்களே वाले हैं। உங்களோடு கூட தேவனை துதிக்கும்படியாக, आप भी हमारे साथ परमेश्वर को स्तुति करने, ஆயத்தமா இருக்கும்படியாக आप तैयारी रहने, உங்களை அன்போடு நாங்கள் கேட்டுக்கொள்ளுகிறோம். आपको हम प्रेम से विनती करते हैं। நிச்சயமாகவே निश्चय இந்த பாடல் வழியாக इस गीतों के द्वारा உங்க காரியத்தை கர்த்தர் வாய்க்க பண்ணுவார். परमेश्वर के आपके कार्य को सफल அவர் உங்களோடு करेगा கூட இருந்து और वो आपके संग உங்களை அவர் रहेगा, பலப்படுத்துவார். वो आपको बलवंत करेगा। இப்போது சொன்ன மாதிரி जिस तरह आप हमेशा ஒரு कहते தமிழ் हैं, பாடலையும் படிப்போம், एक तमिल गीत गाएंगे ஒரு ஹிந்தி பாடலையும் படிப்பாங்க. और एक हिंदी गीत भी गाएंगे। அன்னைக்கு ஸ்பெஷலா आज स्पेशल, என்னோட வாலிப பிள்ளைகள் மாத்திரம் ஹிந்தி பாடலை படிப்பாங்க. आज हमारे जवान बच्चे केवल हिंदी गीत गाने वाले சரியா? हैं। நீங்க அவரோட பாடலை கேட்டு आप सब सुनकर ஆசீர்வதிக்கப்படும்படியாக आशीषित होने के உங்களை लिए அன்போடு நாங்கள் கேட்டுக்கொள்ளுகிறோம். हम आपसे प्रेम से विनती करते हैं। ஒரு தமிழ் பாடலை படிக்கலாம். முதலாவதாக, आप तमिल गीत गाएंगे। உன் காரியத்தை வாய்க்க பண்ணும் கர்த்தர் உன்னோடு இருக்கிறார், உன்னை பேர் சொல்லி அழைக்கும் கர்த்தர் உன்னை கடைசி வரை நடத்தி செல்வார். இந்த பாடலை படிக்கலாம். உன் காரியத்தை வாய்க்க பண்ணும் கர்த்தர் உன்னோடு இருக்கின்றார், உன்னை பேர் சொல்லி அழைக்கும் கர்த்தர் உன்னை கடைசி வரை நடத்தி செல்வார். உன் காரியத்தை வாய்க்க பண்ணும் கர்த்தர் உன்னோடு இருக்கின்றார்,
கர்த்தர் உன்னை கடைசி வரை நடத்தி செல்வார். உன் காரியம் வாய்க்கும் கர்த்தர் நேரத்தில், கர்த்தரால் காரியம் வாய்க்கும். உன் காரியம் வாய்க்கும் கர்த்தர் நேரத்தில், கர்த்தரால் காரியம் வாய்க்கும். உன் கண்ணீரை துடைத்திடும் கர்த்தர் உனக்குள் வசிக்கின்றார். உங்க கண்ணீரை அவர் துடைக்கிறவர். கண்ணீரை துடைத்திடும் கர்த்தர் உனக்குள் வசிக்கின்றார். உன்னை தமக்கென்று பிரித்தெடுத்து மகிமையால் நிரப்பிடுவார். ஆண்டவருக்கு விசேஷமானவர்கள் கேந்து பிரித்தெடுத்து தம் மகிமையால் நிரப்பிடுவார். உன் காரியம் வாய்க்கும் கர்த்தர் நேரத்தில். உங்க காரியம் வாய்க்கும் கர்த்தருடைய நேரத்துல. திருமண காரியங்கள், வேலை காரியங்கள் எல்லாம் வாய்க்கும் கர்த்தர் நேரத்தில், கர்த்தரால் காரியம் வாய்க்கும். உன் நினைவு அவர் நினைவு அல்ல, மேலானதை செய்வார். உங்க நினைவு அவருடைய நினைவு அல்ல, அல்ல மேலானதை செய்வார். செய்வார். உன்னை உடைத்து உருவாக்கும் கொயவனவன் உன்னை சிறப்பாய் வணைந்திடுவார். உன்னை உடைத்து உருவாக்கும் கொயவனவன் உன்னை சிறப்பாய் வணைந்திடுவார். உங்க காரியம் வாய்க்கும், காரியம் வாய்க்கும் கர்த்தர் நேரத்தில். உற்சாகமாக கரங்களை தட்டி வருகிற புதிய மாசத்துல காரியம் வாய்க்கும். சந்தோஷமாக கர்த்தரால் காரியம் வாய்க்கும். ஜெபத்தினை தொடர்ந்திடு மகனே, ஜெபத்தால் ஜெயம் ஜெயமே. ஜெயம் உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஜெபத்தினை தொடர்ந்திடு மகனே, ஜெபத்தால் ஜெயம் ஜெயமே. உன் பாதைகளை கர்த்தர் உயர்த்திடுவார், உன் தடைகளை நொறுக்கிடுவார். தடைகளை நொறுக்குகிற ஆண்டவர் உங்களுக்கு முன்பதாக அவர் கடந்து சென்று கொண்டிருக்கிறார். தடைகளை நொறுக்கிடுவார். உன் காரியம் வாய்க்கும் தக்க நேரத்தில், கர்த்தரால் காரியம் வாய்க்கும். உன் காரியம் வாய்க்கும் கர்த்த நேரத்தில். விசுவாசமாக படியுங்கள். காரியம் வாய்க்கும். உன் ஜெபத்தினை தொடர்ந்திடு மகனே, ஜெபத்தால் ஜெயம் ஜெயமே. அருமையான பாடல். தேவ பிரசன்னத்தை உணர்ந்தோடு கூட இந்த பாடலை படிக்கலாம். ஆமென். ஜெபத்தால் ஜெயம் ஜெயமே. உன் பாதைகளை கர்த்தர் உயர்த்திடுவார், உன் தடைகளை நொறுக்கிடுவார். உன் பாதைகளை கர்த்தர் உயர்த்திடுவார், உன் தடைகளை நொறுக்கிடுவார். உன் காரியம் வாய்க்கும் கர்த்த நேரத்தில், கர்த்தரால் காரியம் வாய்க்கும். 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 உங்க காரியம் நிச்சயமாக வாய்க்கும். निश्चय आपके कार्य सफल கர்த்தருடைய होगा। நேரத்துல வாய்க்கும். परमेश्वर के समय में होगा।
आमेन। आमीन। हालेलुया। अभी हम एक गीत गाएंगे, हिंदी सॉन्ग, अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तू भेज। अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तू भेज। कटने का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तू भेज। कटने का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान ठहर जा, जो का तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान ठहर जा, जो का तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। सूखी हड्डियों की तराई में बड़ी सेना को चलते देखो। अधिकार की वाणी तू दे, पवित्र आत्मा में नबुवत करो। सूखी हड्डियों की तराई में बड़ी सेना को चलते देखो। अधिकार की वाणी तू दे, पवित्र आत्मा में नबुवत करो। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान ठहर जा, जो का तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान ठहर जा, जो का तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। कर्मेल पर्वत की प्रार्थना में छोटे बादल को उठते देखो। आग जैसे कपा, बड़ी अग्नि को फिर से तू भेज। कर्मेल पर्वत की प्रार्थना में छोटे बादल को उठते देखो। आग जैसे कपा, बड़ी अग्नि को फिर से तू भेज। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान ठहर जा, जो का तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान ठहर जा, जो का तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। सीने पर्वत की चोटी पर मैं अग्नि ज्वाला को जलते देखो। इज़राइल के खुदा, वही अग्नि को हम पर तू भेज। सीने पर्वत की चोटी पर मैं अग्नि ज्वाला को जलते देखो। इज़राइल के खुदा, वही अग्नि को हम पर तू भेज। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान ठहर जा, जो का तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा।
के समान बह जा, जो का तूफान काले किया, नदी आत्मा की हम पर बहा, अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान बह जा, जो का तूफान काले किया, नदी आत्मा की हम पर बहा, अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान बह जा, जो का तूफान काले किया, नदी आत्मा की हम पर बहा, अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान बह जा, जो का तूफान काले किया, नदी आत्मा की हम पर बहा, अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान बह जा, जो का तूफान काले किया, नदी आत्मा की हम पर बहा। हालेलुया। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हम एक भजन संहिता पढ़ने जा रहे हैं। भजन संहिता 22, भजन संहिता 22। प्रार्थना। परमेश्वर हमारे वचन के रहस्य जानने के लिए हमारे मन की आंखें खोल दे। आमीन। भजन संहिता 22। हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तू मेरी पुकार से और मेरी सहायता करने से क्यों दूर रहता है? मेरा उद्धार कहाँ है? मेरे परमेश्वर, मैं दिन को पुकारता हूँ परंतु तू उत्तर नहीं देता, और रात को भी मैं चुप नहीं रहता। என் தேவனே, நான் பகலிலே கூப்பிடுகிறேன், உத்தரவு கொடீர். இரவிலே கூப்பிடுகிறேன், எனக்கு அமைதல் இல்லை. परंतु जो इज़राइल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, तू तो पवित्र है। हमारे पुरखा पर भरोसा रखते थे, वे भरोसा रखते थे और उन्हें छुड़ाता है। எங்கள் பிதாக்களிடத்தில் நம்பிக்கை வைத்தார்கள், நம்பின் அவர்களை நீர் விடுவித்தீர். उन्होंने तेरी दुहाई दी और तू तो उनके छुड़ाए। वे तुझी पर भरोसा रखते थे और कभी लज्जित न हुए। परंतु मैं तो गिरा हूँ, मनुष्य नहीं, मनुष्य मेरे नाम धराए है, और लोगों में मेरा मान होता है। நான் ஒரு புழு, மனுஷன் அல்ல, மனுஷரால் நிந்திக்கப்பட்டும் ஜனங்களால் அவமதிக்கப்பட்டும் இருக்கிறேன். वे सब जो मुझे देखते हैं मेरे टट्टा करते हैं और ओट बिचकाते और यह कहते हुए सिर हिलाते हैं। अपने को यहोवा के वश में कर दे, वही उसको छुड़ाए, वो उसको उबारे, क्योंकि वो उससे प्रसन्न है। கர்த்தர் மேல் நம்பிக்கையா இருந்தானே, அவர் இவனை விடுவிக்கட்டும். இவன் மேல் பிரியமா இருக்கிறாரே, இப்பொழுது இவனை மீட்டு விடட்டும் என்கிறார்கள். परंतु तू ही ने मुझे गर्भ से निकाला, जब मैं दूध पीता बच्चा था तभी से तूने मुझे भरोसा रखने सिखाया। मैं जन्मते ही तुझी पर छोड़ दिया गया, माता के गर्भ से तू मेरा ईश्वर है। கர்ப்பத்திலிருந்து வெளிப்பட்ட போதே முதல் சார்பில் விழுந்தேன். நான் என் தாயின் வயிற்றில் இருந்தது முதல் நீர் என் தேவனாய் இருக்கிறீர். मुझसे दूर न हो, क्योंकि संकट निकट है और कोई सहायक नहीं। बहुत सांडों ने मुझे घेर लिया है, बाशान के बलवंत सांड मेरे चारों ओर मुझे घेर हुए हैं। அநேகம் காளைகள் என்னை சூழ்ந்திருக்கிறது, ஆசான் தேசத்து பலத்த எருதுகள் என்னை வளைந்து கொண்டது. वे फाड़ने और गरजने वाले सिंह के समान मुझ पर अपना मुंह पसारे हुए हैं। मैं जल के समान रह गया और मेरी सब हड्डियों के जोड़ उखड़ गए। मेरा हृदय मोह हो गया और मेरे हृदय की भीतर पिघल गया। கண்ணீரை போல ஊற்றுண்டேன், எலும்புகளெல்லாம் கட்டுவிட்டது,
என் இருதயம் மெழுகு போலாகி என் குடல்கள் நடுவே உருகிற்று. मेरा बल टूट गया, मैं टिकारा हो गया और मेरी जीभ मेरे तालू से चिपक गई और तू मुझे मार कर मिट्टी में मिला देता है। क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है, कुत्तों की मंडली मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए हैं, वे मेरे हाथ और मेरे पैर छेदते हैं। நாய்கள் என்னை சூழ்ந்திருக்கிறது, பொல்லாதவர்களின் கூட்டம் என்னை வளைந்து கொண்டது, என் கைகளையும் என் கால்களையும் உருவ குத்தினார்கள். मैं अपनी सभी हड्डियां गिन सकता हूँ, वे मुझे देखते और निहारते हैं। वे मेरे वस्त्र आपस में बांटते हैं और मेरे पट्टों में चौकीदार लगाते हैं। என் வஸ்திரங்களை தங்களுக்குள்ளே பங்கிட்டு என் உடையின் பேரில் சீட்டு போட்டார்கள். परंतु हे यहोवा, तू दूर न रह, हे मेरे सहायक, मेरी सहायता के लिए फुर्ती कर। मेरे प्राण को तलवार से बचा, मेरे प्राण को कुत्ते के फंदे से बचा ले। என் ஆத்துமாவை பட்டயத்திற்கும் எனது அருமையானதை நாய்களின் துஷ்டத்திற்கும் தப்புவியும். मुझे सिंह के मुंह से बचा, हाँ जंगली सांडों के सींगों में से तूने मुझे बचा लिया है। मैं अपने भाइयों के सामने तेरे नाम का प्रचार करूंगा, सभा के बीच में तेरी प्रशंसा करूंगा। உம்முடைய நாமத்தை என் சகோதரருக்கு அறிவித்து சபை நடுவில் உம்மை துதிப்பேன். हे यहोवा के डरवियो, उसकी स्तुति करो, यह याकूब के वंश, तुम सब उसकी महिमा करो। हे इज़राइल के वंश, तुम उसका भय मानो। क्योंकि उसने लेवी को तुच्छ नहीं जाना और न उसे घृणा करता है, न उससे अपना मुख छिपाता है, पर जब उसने उसकी दुहाई दी तब उसकी सुन ली। உபத்திரப்பட்டவருடைய உபத்திரத்தை அற்பமாய் எண்ணாமலும் அருவருக்காமலும் தம்முடைய முகத்தை அவனுக்கு மறைக்காமல் இருந்து தம்மை நோக்கி அவன் கூப்பிடுகையில் அவனை கேட்டருளினார். बड़ी सभा से मेरी स्तुति करना तेरी ही ओर से स्तुति हो, मैं अपने प्राण के उससे भय रखवाले के समान पूरी करूँगा। नम्र लोग घोषित करके तृप्त होंगे, जो यहोवा के मत खोजेंगे वे उसकी स्तुति करेंगे, तुम्हारे प्राण सर्वदा जीवित रहेंगे। சாந்த குணமுள்ளவர்கள் புசித்து திருப்தியடைவார்கள், கர்த்தரை தேடுகிறவர்கள் அவரை துதிப்பார்கள், உங்கள் இருதயம் என்றென்றைக்கும் வாழும். पृथ्वी के सब दूर दूर देशों के लोग उसका स्मरण करेंगे और उसकी ओर फिरेंगे और जाति जाति के सब कुल तेरे सामने दंडवत करेंगे। क्योंकि राज्य यहोवा का है और सब जातियों पर वही प्रभुता करता है। ராஜ்யம் கர்த்தருடையது, அவர் ஜாதிகளை ஆளுகிறவர். पृथ्वी के सब हष्ट पुष्ट लोग भोजन करके दंडवत करेंगे, वे सब जो मिट्टी में मिले जाते हैं और अपना अपना प्राण नहीं बचा सकते, वे सब उसके सामने घुटने टेकेंगे। एक वंश इसकी सेवा करेगा, दूसरी पीढ़ी से प्रभु का वर्णन किया जाएगा। ஒரு சந்ததி அவரை சேவிக்கும், தலைமுறை தலைமுறையாக அந்த ஆண்டுடைய சந்ததி எண்ணப்படும். आखिरी वचन हम सब साथ में पढ़ेंगे। वे आएंगे और उसके दर के कामों के वंश उत्पन्न होगा और वे प्रकट करेंगे कि उसने अद्भुत काम किए हैं। आमीन। हालेलुया। इतने समय हम अच्छा गीत गाए, परमेश्वर की महिमा किए और अभी हम एक भजन पढ़े। कौन सा भजन पढ़े थे? भजन संगीता 22। सभी लोग अपने बाइबल उठाइए, अपने हाथों पे ले लीजिए। भजन संगीता 22। ये भजन संगीता दाऊद का भजन कहा गया है और वो कौन सा समय में लिखा गया है पूछा गया तो प्रधान बजाने वाले के लिए अबलेश्वर के राग में ये दाऊद का भजन गाया गया है। और इसका जो हेडलाइन दिया गया है कि मनवत्वा की पुकार और स्तुतिगान, यानी कि मन की जो दुख दर्द का रहते समय जो पुकार, और उतना ही नहीं परमेश्वर की स्तुति गान करके ऊपर का टॉपिक दिया है। इस भजन संगीता में 31 भजन संगीता है। तो आज हम इसको 3 भाग में हम डिवाइड करते हैं। पहला भाग हम देखें तो पहला वचन से लेके 5वां वचन तक हम पढ़ेंगे तो मसीह का विनती। ये भजन संगीता परमेश्वर यीशु मसीह के आधार पर कहा गया है। मतलब यीशु मसीह जिस दुनिया में आएंगे और वो हमारे लिए दुख उठाएंगे, हमारे लिए दर्द सहेंगे, हमारे लिए बहुत ही दर्द हमारे उठाए जाएंगे और उन पे क्या क्या अत्याचार किया जाएगा, वो सब कुछ वचन यहाँ पे पहले ही भजन संगीता में लिखा गया है।
और उतना ही नहीं, वो जब भी आएगा तो क्या उद्धार होने वाला है, लोगों पर क्या बदलावट होने वाला है, लोगों में क्या अद्भुत कार्य होने वाला है, ये सब कार्य यीशु मसीह के पहले ही जो ये पुस्तक पे क्या क्या है लिख कर रखा है। तो हम आज वही भजन संगीता में देख रहे हैं, पहला वचन से 5वां वचन तक हम देखें परमेश्वर का मसीह का विनती। दूसरा भाग हम देखते हैं 6 वचन से लेके 21 वचन तक मसीह का दुख, और 22 वचन से लेके 31 वचन तक उस दुख उठाने के वजह से, मसीह यीशु दुख उठाने के वजह से पूरे दुनिया को मिला हुआ वो उद्धार के बारे में हम इस पूरे भजन संगीता में हम पढ़ सकते हैं। तो पहला वचन में हम पढ़ेंगे तो, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तू मेरी पुकार से और मेरी सहायता करने से क्यों दूर रहता है? मेरा उद्धार कहाँ है? ये पहला ही उसने एक प्रश्न यहाँ पे डाला है। ये वचन हम सभी जानते हैं कि जब भी यीशु मसीह क्रूस पर लटकते समय इस दुनिया के सारे लोगों का बोझ, सारे लोगों का पाप अपने ऊपर उठा लेते समय कुछ क्षण के लिए पिता उनसे दूर होने की वजह से यीशु मसीह क्या किए? तड़पे गए, और उस समय उन्होंने बताया गया कि हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ा करके हम देखते हैं। तो ये वचन में दाऊद का जीवन में भी कभी वो दुख आया है। हम कई भजन संगीता में हम पढ़ते हैं, दाऊद जो है पहला अपना दुख की बात कह देता है, दर्द परमेश्वर के सामने बोल देता है, और वो कैसा करता है, वो अपने भजन में ही अपना दुख सब कुछ कह देता है। फिर हम दूसरा वचन में देखेंगे तो, या तीसरा वचन में देखेंगे तो, आगे हम वचन में पढ़ेंगे तो वो कहने लग जाता है परमेश्वर के ऊपर भरोसा, परमेश्वर ने किया हुआ छुटकारा, परमेश्वर का स्तुति गान, ये सब कुछ वो लगातार करते आता है। पहले ही वो ये बात कह देता है कि तूने मुझे क्यों छोड़ा है। ये सबके जीवन में आता है। हम एक मनुष्य के जीवन में क्या क्या होने वाला होता है, उसका जन्म से लेके उसके मृत्यु तक उसके जीवन में क्या क्या होने वाला रहता है, ये मनुष्य लिखने से पहले, मनुष्य जानने से पहले परमेश्वर पहले ही बाइबल में लिख के रखा है कि एक मनुष्य के जीवन में क्या क्या तकलीफ़ होता है, उस तकलीफ़ से उसको कैसा छुटकारा मिलेगा, और उस तकलीफ़ क्यों आया है, ये सब कुछ विषय हम बाइबल में पढ़ सकते हैं। तो पहला वचन में यही हम देख रहे हैं कि दाऊद उस समय कहता है कि हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये हम सबके जीवन में, केवल दाऊद के जीवन में नहीं, हम सबके जीवन में ये आता है। कभी कभी हम सोचते कि हमारी प्रार्थना हमेशा प्रभु सुनते रहते हैं, जो भी हम प्रार्थना करते हैं और तुरंत यीशु मसीह हमें उत्तर दे दिया तो हम बड़े आनंद होते हैं, बहुत खुश होते हैं और इतना धन्यवाद देने लगते हैं, पूछो मत। कई बार हम परमेश्वर को उतना धन्यवाद देते हैं, लेकिन कभी कभी जो हमने चाहा, जो हमको चाहिए रहता है, जो हमें बहुत ही ज़रूरत है, वो उसके लिए हम लोग ठहर के प्रार्थना करेंगे, उसके लिए उपवास रह के प्रार्थना करेंगे और उसके लिए समय निकाल के आप प्रभु के चरणों में बैठ के सिर्फ उसी पॉइंट के लिए फोकस देते आप प्रार्थना करते रहेंगे। अगर एक समय आता है वो नहीं होता है तो हम निराश हो जाते हैं। उस समय हम पुकारते हैं कि हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ा है, तूने मुझे क्यों छोड़ा है। शायद वो हमारे लिए अच्छा भी लगता होगा, वो जीवन में हमारे लिए हमें लाभ भी आता होगा, वो शायद हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होगा, फिर भी वो चीज़ हमारे जीवन में नहीं हुआ या हमारी प्रार्थना सुनी नहीं गई, तो हम सब कोई यही कहते हैं कि हे प्रभु, तूने मुझे क्यों छोड़ा है। ये आपके जीवन में हुआ है क्या? ज़रा सोच के देखिए, सबके जीवन में हुआ है। हम कई बार कहते हैं कि प्रभु आपने मुझे क्यों छोड़ दिया, लेकिन परमेश्वर छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है, वो हमें अपने हाथ में थाम कर चलाने वाला परमेश्वर। वही प्रभु खुद कहता है कि मैं संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुझे कैसा छोड़ूंगा, मैं ना तुझे छोड़ूंगा ना तुझे त्यागूंगा करके कहने वाला परमेश्वर कैसा हमें छोड़ सकता है? वो कभी नहीं छोड़ता है। हम और दूसरे भाग में हम देखते हैं कि परमेश्वर मसीह का दुख क्या क्या है। तो 6वें वचन से लेके 21वें वचन में हम जाएंगे तो वहाँ पे कई कार्य लिखा गया है। वहाँ पे हम देखे जाए पर वहाँ पे उसका जो
17 और 18 में हम पढ़ेंगे तो मैं अपनी सब हड्डियाँ गिन सकता हूँ, वे मुझे देखने के निहारते हैं, वे मेरे वस्त्र आपस में बांटते हैं और मेरे पहरे हुए पर चिट्ठी डालते हैं। ये यीशु मसीह के जीवन में ज़रूर हुआ था। जब भी यीशु मसीह क्रूस पर लटकाते समय उनके वस्त्र को वहाँ के सूबेदार लोग ने क्या किए, चिट्ठी डालकर परमेश्वर का, यीशु मसीह का जो वस्त्र को वो लोग ने क्या किए, ले लिए थे और उन्हें उतना तकलीफ़ पहुंचाया था, उनको बेड़िए डाले थे और उन्हें बहुत ही दुख दिया था। तो ये इतने वचन में हम कह सकते हैं कि परमेश्वर का दुख, उसने हमारे जीवन सचमुच में बहुत सारा दुख उठाया है। तो ये कहता है कि जो दुख उठाते हैं उसको दुख को वो कभी क्या नहीं करता, तुच्छ नहीं जानता है। 24 वचन में वही कहा है कि उसने दुखियों को तुच्छ नहीं जाना है और उन्हें कभी घृणा नहीं किया है। हमारे दुख को जानता है। हाँ, हम निराश हो जाते जब ये हमारे मनपसंद, हमारी ज़रूरत, हमारी इच्छा, हमारी जो चाहते नहीं मिलता है तो हम कभी निराश हो जाते हैं, हम दुख हो जाते हैं। लेकिन वो दुखित लोगों को कभी भी क्या नहीं करता है, तुच्छ नहीं जानता है। जो भी हमारे जीवन में घटता है वो भला के लिए होता है। शायद वो हमारे लिए वो बुरा ही लगता हो, लेकिन वो कभी कभी हमारे जीवन में क्या होता है, भला ही लगता है। देखो कई बार ऐसा होता है जो हमने चाहा नहीं मिला, नहीं मिलता है, लेकिन कुछ समय के बाद देखेंगे और सोचेंगे या समझेंगे तो हम सब लोग कहेंगे अच्छा हुआ, क्या नहीं वो मिला नहीं तो बहुत परेशान हो जाता था। हम बाद में हमको पता चलता है कि वो क्यों, परमेश्वर भलाई के लिए ही जो भी करता है, परमेश्वर हमारे जीवन में वो भलाई के लिए ही करता है। और तीसरा भाग में हम देखते हैं कि परमेश्वर उस दुख उठाने की वजह से वो पूरे दुनिया में क्या क्या मिला है, उद्धार मिला है। हम कह सकते हैं कि देखो 31 वचन में कहा है कि वे आएंगे और उसके धर्म के कामों का एक वंश पर जो उत्पन्न होगा यह कहकर कहेंगे कि उसने ऐसे ऐसे अद्भुत काम क्या किया है। वो पीढ़ी पीढ़ी तक लोग, पीढ़ी पीढ़ी तक हमारे यीशु मसीह के मरने के कारण, उनके क्रूस में दुख उठाने के कारण जो लोग कहेंगे इन्हीं के वजह से हमें क्या मिला है, उद्धार मिला है, इन्हीं के वजह से हमारे दुख दूर हुए, इनके वजह से हमारे जीवन में अद्भुत काम हुआ है करके एक जन नहीं, पीढ़ी पीढ़ी तक, वंश वंश तक कहते जाएंगे। यही परमेश्वर का उद्धार है। हम 3 भाग देखें कि पहला हमने ये भाग देखे परमेश्वर का विनती, उसने हमारे लिए भी विनती किया है। हम भी कभी जीवन में तकलीफ होते समय हम भी विनती करते हैं, वही कहा है। और दूसरे देखें कि उस परमेश्वर ने उस विनती में मसीह का दुख हम देखें। तीसरा हम देखें कि दुख उठाने के वजह से दुनिया में क्या मिली है, लोगों को अद्भुत मिला है, उद्धार मिला है करके हमने देखे। आपको एक गवाही कहकर मैं समाप्त करना चाहती हूँ। साधु सुंदर सिंह जी के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। वो एक अच्छा मिशनरी है, परमेश्वर का एक ज़िद्दी एक दास है। वो 1908 में तिब्बत में गए थे और जब भी उनका उम्र था 19वां वर्ष था, तभी वो परमेश्वर की सेवकाई के लिए तिब्बत में गए थे। तो तिब्बत के जगह पर नासा करके एक शहर है, वहाँ पे वो सेवकाई के लिए वो गए थे। तो वहाँ जाते समय लोग वहाँ पे सुसमाचार फैलाने के लिए बहुत ही रुकावट था और जो भी बात नहीं मानते हैं तो उनका बड़ी सी एक दंड मिलती है। तो वहाँ का एक प्राइम मिनिस्टर था, उनका नाम लामा था। तो ये न्यूज़ वहाँ पे पता चला कि ये व्यक्ति यहाँ पर आकर परमेश्वर का सुसमाचार फैला रहा है। जो अपना प्राइम मिनिस्टर ने रोका था वही ये काम कर रहा है बोलकर उनके ऊपर क्या किए, दंड के आरोप लगा दिए थे। तो उनको एक ऐसा दंड मिला कि मृत्यु दंड। और वहाँ का मृत्यु दंड ऐसा होता है कि एक कुआं के अंदर उनको क्या कर देते हैं, डाल देते हैं और कुआं ढक देते हैं। तो जो अगर ढक दिया तो श्वास उनको नहीं मिलता, उसी की वजह से वो क्या हो जाते हैं, तड़प तड़प के मरते हैं। तो एक समय ऐसे होने के कारण इन्हीं को भी वही सज़ा मिली। तभी उनको एक बड़ा कुआं, एकदम गहरा कुआं के अंदर इस दास को, साधु सुंदर सिंह जी को अंदर डाल दिए थे। जैसा डालते ही वहाँ पे गिरते ही उनको एक इतनी बदबू आई अंदर से, यानी कि इतनी सारी लाशें इर्द गिर्द पड़ा है, उसमें कुछ सड़ा हुआ है, कुछ हड्डी है, उसमें कीड़े पड़े हैं, इतनी बदबू आ रही है। और उनको अंदर डालकर ऊपर का ढक्कन क्या किए, ढक दिए।
और कई दिन तक उसके अंदर रहना पड़ा। तो वो उस समय परमेश्वर को विनती किया, जिस तरह अपना यीशु मसीह परमेश्वर को पुकार दे, प्रभु हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो साधु सुंदर सिंह जी भी वही किए, वही पुकारने लगे, हे परमेश्वर मैंने क्या गलती किया, आपका सुसमाचार मैंने फैलाया, आपका ही बारे में लोगों को बताया, इतनी बड़ी दंड मुझे क्यों, मैं यहाँ पे नहीं रह पा रहा हूँ, मेरा दम घुट रहा है, मुझे ये बांस सहन नहीं हो रहा है, बहुत सारा बदबू आ रही है, मैं नहीं रह पा रहा हूँ करके पुकारते समय अचानक से ऊपर से जो ढक्कन खुली गई और वहाँ का जो प्रकाश था वो अंदर आया। अंदर आते समय वहाँ पे उनको आवाज़ आई, ले हाथ थाम ले करके। वो जो जैसा उन्होंने वो हाथ को थामा, उसको उनको पता ही नहीं चला कि कैसा वो बाहर आए। बाहर आके देखा किसने मुझे बाहर निकाला, तो पता ही नहीं किसने निकाला करके उस जगह से बचकर वो चले गए। निश्चय जो भी दुख उठाते हैं परमेश्वर उनको नहीं छोड़ता है। जब भी हम कहते हैं परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ा है, क्यों मुझे त्याग दिया है करके बोलते हैं, लेकिन कभी आपको ये नहीं समझना है कि हमारे दुख के समय में वो दूर नहीं है, हमारे पास है, हमारे करीब है, हमारे कुएं में ढकेलने के लिए नहीं छोड़ेगा। वो हमें उठाकर कुछ समय के लिए तकलीफ़ है वो सहन करना ही पड़ता है, क्योंकि तकलीफ़ सहने से ही हमें क्या मिलेगा, सिंहासन मिलता है। क्रूस उठाने से ही हमें सिंहासन मिलता है करके हम कई बार सुने हैं। तो कभी निराश मत होइए, परमेश्वर कभी आपको हाथ नहीं छोड़ेगा, ज़रूर आपको परमेश्वर बड़ा बड़ा काम करने वाले हैं। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे, सभी घुटने टेक कर आंखें बंद करके, जिस तरह हमने अभी वचन सुना है, जो मेडिटेशन अभी हमने किया है भजन संगीता पर, आप सभी लोग ने पढ़े थे, सभी लोग ने ध्यान किए थे, सभी लोग ने उसे पहचाने, इस वचन को आपने जाना। एक बार समय मिलते समय ये वचन को ज़रा ध्यान से पढ़ कर देखिए, एक एक वचन में परमेश्वर का एक सामर्थ्य है। हाँ, निश्चय परमेश्वर आपका जीवन में बड़ा काम करेंगे। प्रार्थना करेंगे हम सब। आइए हम सब अपनी आँखों को बंद कीजिए, हम एक मुख्य समय पे आ रहे हैं, हम एक मुख्य समय में आए हैं। हम सब परमेश्वर की आराधना करने के लिए तैयारी में हैं। हम सब आराधना करेंगे, धन्यवाद कहेंगे। कई बार हमने भी कहा कि प्रभु आपने मुझे क्यों छोड़ा है, आपने मुझे क्यों त्यागा करके हमने कई बार हमने कहा है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैंने तुझे कभी नहीं छोड़ा मेरा बेटा, मैंने तुझे कभी नहीं मैंने त्यागा हूँ, मैंने कभी तुझे धोखा नहीं दिया हूँ। तूने मुझे कितने बार धोखा दिया है, तूने मुझे कितने बार छोड़कर चला गया है, लेकिन मैं तेरे ही इंतज़ार में खड़ा था कि मेरी बेटी या मेरा बेटा एक दिन मेरे पास फिर से आएगा करके मैं तेरे लिए इंतज़ार में था। बच्चा, मैं तुझे नहीं छोड़ा हूँ, मैं तुझे नहीं त्यागा हूँ करके हमारा परमेश्वर कहता है। कितना अच्छा परमेश्वर को हमने पाया। देखिए उसने अपने क्रूस उठाने की वजह से, उसने दुख उठाने की वजह से हमें कितनी शांति मिली है, हमारे रोगों को चंगा मिला है, हमारे तकलीफ़ को परमेश्वर दूर किया है। धन्यवाद कीजिए। परमेश्वर कहिए प्रभु अगर आप दुख नहीं उठाते, अगर वो क्रूस आप नहीं उठाते, जिस स्थान में मुझे मरना चाहिए था, जिस स्थान में मुझे क्रूस पर लटकाना चाहिए था, जिस परमेश्वर स्थान में मुझे उस खीले ठोकने थे, उस जगह पे आपको लटका गया प्रभु जी। जितना बड़ा गुनहगार मैं था प्रभु, उतना बड़ा गुनहगार मैं था प्रभु जी, लेकिन आपको गुनहगार बनना पड़ा ताकि मेरे दंड को आप ले लिए हैं प्रभु। कितना अच्छा परमेश्वर। देखिए हम सब कहिए प्रभु आप बहुत अच्छे प्रभु, आपका जैसा कोई नहीं है परमेश्वर, आपका जैसा कोई नहीं है प्रभु जी। परमेश्वर आप मुझे सहायता कीजिए करके आप सभी लोग प्रार्थना कीजिए। ये महीने के अंतिम इतवार में हम लोग आए हैं, 4 हफ्ता भर परमेश्वर ने हमें संभाला है। कितनी मुश्किल की घड़ी आई थी, कितनी दुख की घड़ी आई थी, कितने आंसू के समय आए थे, परमेश्वर ने हमें नहीं छोड़ा है, क्योंकि उसने वचन में कहा है कि उसने हमारे एक सहायक को अपने पास दिया है ताकि वो हमेशा हमें सहायता कर सके। हमारे दुख के समय में, हमारे तकलीफ़ के समय में, हमारे आंसू के समय में वो हमारी सहायता कर सके करके उस पवित्र आत्मा को हमारे पास दिया है। क्या हम उस पवित्र आत्मा को हम स्वागत करेंगे? क्या उस पवित्र आत्मा को हम स्वागत करेंगे? थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हम लोग प्रार्थना करेंगे परमेश्वर आपका उस पवित्र आत्मा मेरे अंदर बह दीजिए प्रभु जी, मेरे अंदर बह दीजिए परमेश्वर।
उसी आग को मेरे अंदर भेज दीजिए परमेश्वर। जो तूफान आपने पहले परमेश्वर उस अटारी पर भेजे थे, वही तूफान को परमेश्वर मेरे अंदर फिर से भेज दीजिए प्रभु जी। वही महिमा को फिर से भेज दीजिए प्रभु जी। परमेश्वर बहने दीजिए ये हवा को प्रभु जी, बहने दीजिए परमेश्वर इस पवित्र आत्मा को प्रभु, बहने दीजिए तेरी महिमा को प्रभु जी। परमेश्वर सहायता कीजिए, वो आग को फिर से भेज दीजिए परमेश्वर। उस आग के वजह से हमारे जीवन बदल सके, हमारे मन बदल सके करके हम सभी लोग परमेश्वर विनती करेंगे। हम सभी लोग परमेश्वर से विनती करेंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। बहने दे उस हवा को, छू ले हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले। करते प्रार्थना तुझसे, बहने दे उस हवा को, छू ले हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले। करते प्रार्थना तुझसे, तेरी महिमा से, तेरी सामत से, फिर से तू अभिषेक कर दे। तेरी महिमा से, तेरी सामत से, फिर से तू अभिषेक कर दे। आप पवित्र आत्मा, सब कहिए, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, हमें भर दीजिए, हमें भर दीजिए प्रभु। आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। तू बदल दे मेरे मन को, ले आशीष इस जीवन को। तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको। तू बदल दे मेरे मन को, ले आशीष इस जीवन को। तेरा करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको। तेरी महिमा से, तेरी सामत से, फिर से तू अभिषेक कर दे। तेरी महिमा से, तेरी सामत से, फिर से तू अभिषेक कर दे। आप पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे। तेरी महिमा से, तेरी सामत से, फिर से तू अभिषेक कर दे। कहिए सब लोग, फिर से वो आग बरसा दे, फिर से बरसा दे प्रभु जी। फिर से वो तूफान दीजिए, महिमा और सामर्थ से भर दीजिए। सभी लोग मुखर से कहिए, मुखर से कहिए, प्रभु आप हमारे जीवन में दुआ चाहो करके हम पुकारे परमेश्वर को। ओ आप पवित्र आत्मा, सभी लोग पुकारिए। आप पुकारते समय पवित्र आत्मा आपके घर पर आएंगे, आपके घर पर उतरेंगे। वही पवित्र आत्मा आपके
भर दीजिए, आपकी करुणा से भर दीजिए, आपकी दर्शन से भर दीजिए, आपकी महिमा से भर दीजिए। आपके बच्चों की घर पर उस सारे पवित्र आत्मा से भर दीजिए, वो पवित्र आत्मा को भर दीजिए, सारे दुष्ट क्रिया को दूर कीजिए, सारा भय की आत्मा को दूर कीजिए, आपका पवित्र आत्मा को भर दीजिए। उनके दुख दूर हो प्रभु, उनका परेशानी दूर हो, उनका परेशानी दूर हो, परमेश्वर का अशांति दूर हो, उनको शांति से भर दीजिए। परिवार में एकता दीजिए प्रभु, आप छू लीजिए प्रभु, छू लीजिए पवित्र आत्मा, तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको। क्या कह सकेंगे हम सब? परमेश्वर मेरे जीवन को बदल दीजिए। परमेश्वर तब बदलेगा जब उस पवित्र आत्मा आपके अंदर होते समय आपके जीवन के हर एक कार्य बदलेगा, आपका जीवन के दुख बदलेगा, परेशानी बदलेगा, आप आनंद से रहोगे। परमेश्वर ने इस आराधना को परमेश्वर ने आशीष करके दिया है, वो पवित्र आत्मा से आपको भर दिया है, आपका दुख दूर हुआ है। परमेश्वर ने उस पवित्र आत्मा से आपको भरकर वो आनंद में आपको परमेश्वर ने रखा है। उस आनंद की नदी में आप बहते रहिए, आप बहते रहिए और सारे दुख को भूलते रहिए। वो परमेश्वर से प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं इतने समय आप हमारे संग थे प्रभु जी, हमारे गीतों में, हमारे आराधना में आपने परमेश्वर वास किए। परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं। जो जो दुख परेशानी में है, जिनको ज़रूरत में है, बीमारी में है, जिनको परमेश्वर आपकी आवश्यकता है प्रभु जी, आप उनके संग रहकर उनकी सारी परेशानी को दूर कर दीजिए। आज के इस विश्राम दिन, आज के पवित्र दिन उनके परिवार, उन व्यक्तिगत जीवन में, सभी के जीवन में एक आशीषदायक हो प्रभु। उन्हें आशीष कीजिए, हमें अच्छा वचन दीजिए प्रभु, ताकि परमेश्वर वचन सुनकर 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लाने के लिए हम हर एक को मदद कीजिए। अपने दास को भर दीजिए, परमेश्वर को छू लीजिए, वचन में परमेश्वर आग सा बहने दीजिए प्रभु जी। सुनने वालों को परमेश्वर हृदय में छेद होकर हम क्या करें, उद्धार पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए करके ऐसे लोग उद्धार पाने के लिए मदद कीजिए, छू लीजिए। सारा आदर, महिमा, गौरव आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக. परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। இந்த அருமையான ஓய்வு நாள் காலை வேளைக்காக ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். इस अच्छे इतवार के सुबह के समय के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। இந்த மாசத்தை நாம் கடைசி ஓய்வு நாள் வந்து இருக்கிறோம். इस महीने के अंतिम इतवार में हम लोग आए हैं। உங்களை இந்த ஜெபத்தின் மூலமாக आपको इस प्रार्थना के द्वारा உங்களை சந்திப்பதில் நாங்கள் மிகவும் சந்தோஷம் அடைகிறோம். आपसे मिलने में हम बहुत ही आनंदित होते हैं। தேவ கிருபை தொடர்ந்து உங்களை வருகிற புதிய மாதத்திலும் தாங்கட்டும். परमेश्वर की अनुग्रह लगातार आपको आने वाले नए महीने में भी चलाएगा। ஆண்டவர் நல்லவராகவே கடந்த 3 வாரங்களாக காணப்பட்டார். परमेश्वर हमारे जीवन में भलाई बनकर पिछले 3 हफ्ता में संभाला है। இந்த 4வது வாரத்திலும் इस चौथा हफ्ते में भी கர்த்தர் நம்மை பலப்படுத்தும்படியாக, परमेश्वर हमें बलवंत करने के கர்த்தருடைய लिए, கிருபை உங்களை தாங்கும்படியாக परमेश्वर की अनुग्रह आपको संभालने நான் के लिए உங்களுக்காக ஜெபிக்கிறேன். हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। கர்த்தர் நல்லவர். परमेश्वर अच्छा है। இயேசுவின் நாமத்தினால यीशु मसीह के नाम से உங்க எல்லாருக்கும் आप सबको அன்பின் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். प्रेम की बधाइयां देते हैं। நாம் இன்றைக்கும் हम आज भी கர்த்தருடைய வசனத்துக்குள்ளாக நம்ம கடந்து செல்லுவோம். परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ेंगे। பரிசுத்த ஆவியானவர் पवित्र आत्मा அவர் மூலமாக उसके द्वारा என்ன பேச நினைத்திருக்கிறாரோ जो बातें करना चाहता है, நாம் அவருடைய வார்த்தை கீழ்ப்படிந்து हम उसकी बातों को सुनकर, அவருடைய वचனத்தை கேட்டு उसके वचन को सुनकर அதுவே நடக்கும்படியாக उसके अनुसार चलने के நாம लिए நாமே அர்ப்பணித்துக் हम கொள்வோம். अपने आप को अर्पण இந்த करेंगे। வசனத்துக்குள்ளாக கடந்து செல்வோம். वचन की ओर बढ़ेंगे। நீதிமொழிகள் नीति वचन की पुस्तक 19ஆம் அதிகாரம் 19वां अध्याय அதனுடைய 15வது
வசனம் उसका 15वां वचन, அதுல சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது, उसमें कहा गया है சோம்பல் தூங்கி விழ பண்ணும், आलस भारी नींद ले आती है அசதியானவன் और जो ढिलाई से அவன் பட்டினியாய் वो இருப்பான். भूखा रह जाता है। கர்த்தர் நாமம் மகிமை உண்டாவதாக. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। சாலமோன் ஆகிய ஞானி सुलोमन ज्ञानी இந்த நீதிமொழி அவர் எழுதி इस இருக்கிறார். नीति वचन को उन्होंने लिखा है। சோத்ரம், இந்த வசனங்கள் நீங்க அதிகமாக நீங்க படித்திருக்கலாம். इस वचन को आप बार-बार पढ़े होंगे। இதுல சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது, इसमें कहा गया है சோம்பல் வண்ணும் தூங்கி விழ பண்ணும் என்று சொல்லப்பட்டு जो இருக்கிறது. आलसी है वो भारी नींद से गिर जाता है அசதியானவன் பட்டினியாய் இருப்பான் என்று சொல்லப்பட்டு और இருக்கிறது. जो ढिलाई से काम करता है वो भूखा ही रह जाता இந்த है। சோம்பேறியை குறித்து ये आलस के बारे में இந்த நீதிமொழிகளிலே इस नीति वचन में சோத்ரம் அதிகமாக எழுதப்பட்டு இருக்கிறதை நம்மால பார்க்க முடிகிறது. अधिक रीति से लिखा गया है कि हम देख सकते हैं। அதாவது சோம்பேறிகள் என்று சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது. आलसी करके कहा गया है। சோம்பல் வந்து தூங்கி விழ பண்ணும். जो आलस है वो नींद ले आती है। எந்த ஒரு மனிதனும் कोई भी मनुष्य சோத்ரம் அவர்கள் சோம்பலா காணப்பட்டார்களோ अगर उसमें आलस हो तो அவருடைய வாழ்க்கையில उनके जीवन में ஒரு ஜெயத்தையோ एक जय को ஒரு ஆசீர்வாதத்தையோ या कोई आशीष को நன்மைகளையோ या भलाई को அவர்கள் பெற்றுக்கொள்ள முடியாது. वो लोग पा नहीं सकते। அந்த சோம்பலானது वो आलस जो है அவர்களை தூங்கி விழ பண்ணும் என்று சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது. वो लोग को नींद से गिराएगी करके कहा गया அது है। மாத்திரமல்ல, उतना ही नहीं, நீங்க நீதிமொழிகள் आप लोग नीति वचन 21ஆம் அதிகாரம் 21वां अध्याय 25 சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது. 25वां वचन में कहा गया है சோம்பேறியின் கைகள் வந்து आलसी का हाथ जो है வேலை செய்ய சம்மதியாதினால் हाथ काम करने के लिए वो परमिशन न देने के அவன் कारण ஆசை அவனை கொல்லும் என்று சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது. उसकी इच्छा ही उसे मारेगी करके कहा गया है। சோம்பேறி வந்து आलस जो है அவனுடைய கைகள் வந்து வேலை செய்வதற்கு சம்மதிக்காதான். उसके हाथ जो है काम करने से इनकार करती है। எப்பொழுதுமே அவர்கள் சும்மா இருக்கவே நினைப்பார்கள். हमेशा शांत चुपचाप रहना ही सोचते हैं। சிலவர்கள் கையை கட்டிக்கொண்டே இருப்பார்கள். कुछ लोग हाथ बांध कर बैठे रहेंगे। சோத்திர சபைகளிலும் கையை கட்டிக்கொண்டே இருப்பார்கள். कलीसिया में भी हाथ बांध कर बैठेंगे। அல்லேலூயா என்று சொன்னால் கூட हालेलुया बोलेंगे तो भी சோத்திர கைகளை கட்டிக்கொண்டே பார்த்து கொண்டு இருப்பார்கள். हाथों को बांध कर देखते रहेंगे। அப்ப சோம்பலுடைய கைகள் வந்து तो आलसियों की हाथ जो அது है வேலை செய்வதற்கு சம்மதிக்காதான். काम करने के लिए इनकार करेगी। பிரைஸ் அல்லாஹ். हालेलुया। அது சோம்பல் வந்து ரெண்டு விதமாக நம்ம சொல்லலாம். आलसपन में दो प्रकार का कह सकते ஒன்று हैं। சரீர சோம்பல் என்று சொல்லலாம். एक शरीर की आलस कह सकते हैं இன்னொன்று ஆவிக்குரிய சோம்பல் என்று சொல்லலாம். और एक आत्मिक आलसपन कह सकते இந்த हैं। ரெண்டு ये சோம்பல்களையும் दोनों प्रकार की आलसपन இந்த தேவனுடைய வசனமானது परमेश्वर के वचन जो அது है எதிர்க்கிறது. वो उसके खिलाफ खड़े रहती है। ஹalleluya. हालेलुया। பிரைஸ் அல்லாஹ். हालेलुया। அது சரீர விதமான சோம்பல் இருக்கலாம். तो शरीर प्रकार की आलसपन हो இது सकती है ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில வளர்ச்சி அடையாதபடிக்கு या आत्मिक जीवन में उन्नति न होते हुए இருக்கிற இடத்திலேயே இருக்கிற வண்ணமாக இருக்கிற சோம்பலாக பார்க்கப்படுகிறது. रहने वाले स्थान में ही रहते हैं। ऐसे आलसपन को हम देख सकते இப்படியாக हैं। நீதிமொழிகளில इस प्रकार से नीति वचन में சோம்பலை குறித்து அதிகமாக சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது. आलसपन के बारे में अधिक रीति से कहा गया है। இன்னொரு வசனம் நீங்க பார்க்கும் பொழுது और एक वचन आप देखते அத समय அறுப்பில பெய் वो उसको कटनी के समय சோம்பேறி பிச்சை கேட்டாலும் आलसी अगर भीख मांगे तो அவனுக்கு भी ஒன்றும் கிடைக்காதாம். उसको कुछ नहीं मिलेगा। பாருங்க, சோம்பேறி வந்து என்ன வேலை செஞ்சாலும் आलस अगर जो भी काम करेगा तो அவனோட வாழ்க்கை வந்து उसके जीवन में ஒரு உயர்வுக்குள்ளா கடந்து வராது. एक ऊंचा पद नहीं आता है। ஒருவேளை உலக பிரகாரம் வேலைகள் செய்யலாம், संसार प्रकार के काम कर सकता है, ஆண்டவருக்காக ஊழியம் செய்யலாம், परमेश्वर के लिए सेवकाई कर सकता है, ஊழியக்காரங்களா இருக்கலாம், सेवकाई कर सकता है, சோத்திரம் தேவனுடைய பிள்ளைகளா இருக்கலாம், परमेश्वर का लोग हो सकता है யாரா या இருந்தாலும் कोई भी हो। அத வேதவசனம் தெளிவாக சொல்லுகிறது. परमेश्वर की वचन कहती அத है சோம்பேறியின் கைகள் வந்து आलस का हाथ பிச்சை கேட்டாலும் अगर वो भीख मांगे तो அவர்களுக்கு भी ஒன்றும் கிடைக்காது. उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। இப்படியாக சொல்லப்பட்டு इस இருக்கிறது. तरह से कहा गया है। அப்போ நம்ம தேவனுடைய பிள்ளைகளாகிய நம்ம परमेश्वर के लोग हम வசனத்தை கேட்கிற நீங்கள் वचन को सुनने वाले आप लोग நம்முடைய வாழ்க்கையில हमारे जीवन में அதாவது ஜாக்கிரதை உள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும். जागरूक रीति से हमें रहना चाहिए। இன்னொரு வசனம் சொல்லப்பட்டு एक இருக்கிறது, और वचन में कहा गया है சோம்பேறியின் ஆத்துமா आलस की जो आत्मा விரும்பியும் और चाहते हुए ஒன்றும் भी பெறாது. कुछ नहीं पाएगी। சோம்பேறி என்ன நினைப்பான் தெரியுமா? आलसी क्या सोचेगा? காலையிலே எந்திரிக்க நினைப்பான், वही उठना है, ஜெபிக்க நினைப்பான், प्रार्थना करने सोचेगा, அவன் விரும்புவான், लेकिन चाहेगा காலையில எந்திரிக்கணும், सुबह उठना है, சரியான நேரத்திற்கு வேலைக்கு போகணும், ठीक समय में काम पे जाना है, சரியான நேரத்திற்கு ஆலயத்துக்கு போகணும், ठीक समय में कलीसिया में जाना அவனுக்கு है, விருப்பம் இருக்குது. उसके अंदर चाहत ஆனா होगी। பாருங்க,
लेकिन அது விரும்பினத चाहने அவன் वाले அதை செய்ய மாட்டான். वो नहीं करेगा। அல்லேலூயா. Hallelujah. அதான் சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது. वो लिखा गया है அவன் விரும்பினாலும் वो चाहेगा तो भी அது ஒன்றும் பெறாது. वो कुछ नहीं पाएगा। இன்னொன்று சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது. एक और कहा गया है ஜாக்கிரதையுள்ளவருடைய ஆத்துமாவோ जागरूक जो है उसकी प्राण புஷ்டியாகும். वो अच्छी तरह से रहेगी। ஆமென். हालेलुया। ஜாக்கிரதையா இருக்க வேண்டும். जागरूक रहना है। பிரைஸ் அல்லாஹ். हालेलुया। அது மாத்திரமல்ல इतना ही नहीं இன்னொரு பகுதி சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது. एक और चीज कहा गया है ஜாக்கிரதையுள்ளவருடைய கை जो जागरूक है उसके हाथ ஆளுகை செய்யுமா. वो राज्य करेगा। ஆமென். हालेलुया। சோம்பேறியின் கை வேலை செய்யாது. आलसी का हाथ काम नहीं करेगा। எந்த மனுஷன் ஜாக்கிரதையோட கை இருக்கிறதோ लेकिन जिस मनुष्य का हाथ जागरूक है அவருடைய கைகள் வந்து उसके हाथ से ஆளுகை செய்யும் என்று சொல்லப்பட்டு वो இருக்கிறது. राज्य करेगा। क्योंकि कहा உடைய गया கைகள் है எப்படி இருக்கிறது? आपके हाथ कैसे हैं? உடைய கைகள் ஆளுகை செய்து கொண்டு இருக்கிறதா? आपके हाथ राज्य करती है क्या? உடைய கைகள் வேலை செய்யாமல் இருக்கிறதா? आपके हाथ कुछ काम नहीं करते हैं இன்றைக்கு क्या? ஆண்டவர் आज परमेश्वर இப்படிப்பட்டதான சோம்பல்களை इस प्रकार की आलसियों को ஆண்டவர் விடுவிக்கும்படியாக परमेश्वर छुड़ाने के அவர் लिए பேசிக் கொண்டே वो இருக்கிறார். बातें कर रहा है। ஆமென். हालेलुया। ஹalleluya. हालेलुया। நாம் ஆளுகை செய்ய பிறந்தவர்கள். हम राज्य करने के लिए जन्म लिए வேதத்தில் हैं। சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது, शास्त्र में कहा நீ गया है அநேக ஜாதிகளை ஆளுவாய், अनेक जातियों को राज्य करेगा அவர்களோ लेकिन वो लोग உன்னை ஆளுவதில்லை. तुझे राज्य नहीं करेंगे। நீங்க சொல்லுங்க பாப்போம். आप लोग कहिए நீங்கள் நானும் யாரு? आप और हम कौन हैं? ஆளுகை செய்ய பிறந்தவர்கள். राज्य करने के लिए जन्मे हैं। நாம் ஆளுகை செய்கிறவர்கள். हम राज्य करने वाले ஒரு हैं। நாளில एक दिन में இந்த உலகத்தை इस संसार में நாம் நியாயந்திருக்க हम போகிறோம். न्याय करने वाले நாம் हैं। ஆளுகை செய்ய போகிறோம். राज्य करने वाले அந்த हैं। அதிகாரத்தை वो अधिकार को அவர் நமக்கு தருகிறார். वो हमें देता அவன் है। யாருக்கு ஆளுகை செய்வான்? कौन आकर राज्य நம்ம करेगा? தூங்கிட்டு இருக்கிறவனா? ऐसे सोने वाला क्या? ஜெபிக்காதவர்களா? प्रार्थना नहीं करने वाले? ஆலயத்துக்கு வராதவர்களா? कलीसिया में नहीं आने वाले? அப்படி அவர்கள் அல்ல. वो लोग नहीं। அவருடைய கையானது उनके हाथ ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும். जागरूक रीति से रहना है। ஹalleluya. हालेलुया। வேலை செய்கிற சமயம் நல்லா சம்பாதிக்க काम வேண்டும். करने वाले समयों में अच्छी तरह से कमाना है। நல்ல வேலை செய்ய வேண்டும். अच्छी तरह से काम करना है। நல்ல உழைக்க अच्छी வேண்டும். तरह से मेहनत करना है। அப்பொழுதுதான் तब ही ஒரு கம்பெனிலேயோ एक कंपनी में இல்ல ஆபீஸ்லயோ या ऑफिस में இல்ல உங்க வியாபாரத்திலேயோ या आपके धंधे में கர்த்தர் உயர்வை அவர் கட்டளையிடுவார். परमेश्वर ऊंचा पद देगा। ஹalleluya. हालेलुया। எந்த மனிதர்கள் कोई भी मनुष्य அவர்கள் சோம்பேறி இல்லாமல் वो लोग आलसपन में ना होते हुए சுறுசுறுப்பாக வேலை செய்கிறார்களோ अच्छी तरह से जो काम करते வேதத்தில் हैं சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது, शास्त्र में कहा கையின் गया है, பிரயாசத்தை நீயே तेरे சாப்பிடுவாய், हाथ की प्रयास को तू ही खाएगा। உனக்கு பாக்கியமும் நன்மை तेरे உண்டாயிருக்கும். जीवन में भाग्य और भलाई होगा। நல்ல உழைக்கணும், अच्छी तरह से मेहनत करना வேற है। சிந்தி நல்ல உழைக்கணும், मेहनत का पसीना बहाकर मेहनत நல்ல करना நல்ல है। ஊழியம் செய்ய अच्छी வேண்டும், तरह से सेवकाई करना है। ஆண்டவருக்காக ஓட வேண்டும், परमेश्वर के लिए दौड़ना है। வேதவசனங்களை படிக்க வேண்டும். वचन को पढ़ना है। அதற்கு சோம்பலே இருக்கக்கூடாது. उसमें आलसपन नहीं रहना है। ஹalleluya. हालेलुया। அநேகர் வீட்ல और अनेकों के घर में அலமாரில இருக்கிற வேதம் அப்படியே தான் இருக்குது. अलमारी में जो शास्त्र रहता है वो इसी रहता ஏன்னா है। இப்போ 5-6 மாசமா சபை இல்ல. क्योंकि अभी 5-6 महीने से कलीसिया சில बंद है। ஆட்களுக்கு कुछ लोगों के लिए வேதகமும் இருக்குதா शास्त्र कुछ है क्या? அப்படிங்கிற சந்தேகமா இருக்குது. ऐसा संदेह आ அப்படிங்கிற चुका है। புஸ்தகம் இருக்குதா ऐसा कोई पुस्तक है அப்படி क्या? ஆச்சரியமா நீங்க பார்த்து கொண்டு இருக்கிறாங்க. आश्चर्य से देखने वाले लोग हैं। அவருடைய கை எப்படி ஆசீர்வதிக்கப்படும்? उनके हाथ कैसे आशीषित இந்த होगा? வேதத்தை யாரு சுமக்கிறார்களோ जो शास्त्र को कौन उठाकर चलता है? கர்த்தர் அவர்களை சுமப்பார். परमेश्वर उन्हें चलाएगा। கர்த்தர் அவர்களை உயர்த்துவார். परमेश्वर उन्हें ऊंचा करेगा। நீங்க சுறுசுறுப்பாக आप लोग जागरूक रीति से ஜாக்கிரதை உள்ளவர்களாக जागरूक रहते இந்த हुए உலகத்துல ஜீவனம் பண்ண इस வேண்டும். संसार में जीना है। சரியா? ठीक है। நான் ஒரு சம்பவத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்ல एक விரும்புகிறேன். संभव को आपके सामने அது बताना चाहते வேதத்துல हैं। சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது. शास्त्र में वो कहा गया है। இயேசு यीशु அந்த சம்பவத்தை उस संभव को ஊமையாக சொன்னார். एक छोटी सी दृष्टांत நம்ம के அந்த लिए காரியத்தை பார்க்கலாமா? हम उस कार्य को அப்ப நம்ம देखेंगे। எதுல நம்ம அதிக ஜாக்கிரதையா இருக்க हमें வேண்டும்? किसमें अधिक जागरूक रहना எதுல है? நம்ம சோம்பலா இருக்க கூடாது? किसमें हमें आलसपन में नहीं रहना என்று ஒரு है? ऐसा है। ஒரு ரெண்டு சம்பவத்தை ரெண்டு காரியத்தை दो कार्यों को உங்கள் மத்தியில आपके बीच में நான் வைக்க हम விரும்புகிறேன். रखना चाहते हैं। மிக கவனமாக இதை கேட்க आप வேண்டும். लोग ध्यान से सुनिए। உங்க கவனம் அங்கங்க சிதறக்கூடாது. आपकी ध्यान यहाँ वहाँ न जाए। நிச்சயமாக நிச்சய. உங்களுடைய வாழ்க்கையில आपके जीवन में ஆண்டவர் परमेश्वर ஒரு மாற்றத்தை எதிர்பார்க்கிறார். एक बड़ी बदलाव को ஒரு चाहता है। மாற்றத்தை நோக்கி நீங்க கடந்து போக வேண்டும் எதிர்பார்த்து एक கொண்டு बदलाव இருக்கிறார். की ओर जाने के लिए आपको चाहता ஒரு है। கடைசி காலத்தை வாழ்ந்து கொண்டு एक இருக்கிறோம். अंतिम दिनों में हम लोग जीते हैं। ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகை हमारा परमेश्वर यीशु मसीह का आगमन மிகவும் சமீபமா இருக்கிறது. बहुत ही समीप है। அவர் சீக்கிரமாக वो शीघ्र में ही இந்த உலகத்திலே संसार में அவர் வரப்போகிறார். आने वाला है। அப்ப நம்ம எந்த காரியத்துல कौन से कार्य को நாம ஜாக்கிரதையா இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி जागरूक रहना है करके சில காரியங்களை பார்க்கலாம். कुछ कार्य को हम लोग देखेंगे। முதலாவதாக सबसे पहले வேதவசனத்தை கையில் எடுத்துக் पवित्र கொள்ளுங்கள். शास्त्र को अपने हाथ में लेकर உங்களுக்கு தெரிந்த சம்பவம் தான். आपको आप जानते हैं ऐसा இல்ல संभव வேற எது இடத்துல பேசலாம். कोई बाहर से लेकर नहीं बात कर रहे வேத
வேதவசனத்தை சுட்டிக்காட்டி பேச விரும்புகிறேன். शास्त्र को ही हम बता रहे हैं। இயேசு சொன்னதை சுட்டிக்காட்ட விரும்புகிறேன். यीशु ने जो कहा वही आपको सिखा रहे हैं। மத்தேயு சுவிசேஷம் मत्ती रचित सुसमाचार 25ஆம் அதிகாரம் 25वां अध्याय 26வது வசனம். 26वां वचन அது पढ़ेंगे। என்ன சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது? उसमें क्या कहा गया है? அவனுடைய எஜமான் उसका जो मालिक பிரதித்திரமாக उसको उत्तर देते हुए பொல்லாதவனும் जो बुराई சோம்பேறியான ஊழியக்காரனே, और आलसपन की जो सेवक, நான் விதைக்கிற இடத்துல அறுக்கன்னு அறிந்தாயே. मैं जब बोया तब कटनी के समय बोया करके काटा है। அல்லேலூயா. हालेलुया। அவன் எஜமான் வந்து वो एक मालिक है। ஒரு 3 ஊழியக்காரரை தெரிந்து கொண்டார் வைக்கலாம். 3 सेवक लोग को चुन लिया। 3 ஊழியக்காரனை தெரிந்து கொண்டு 3 सेवकों को चुनकर ஒரு ஊழியக்காரனை एक सेवक को ஒரு வேலைக்காரனுக்கு एक सेवक को 5 தாலந்து கொடுத்தான். उसको 5 का मोहरे दिया। அந்த 5 தாலந்தை கொடுத்தவன் उस 5 मोहरे को देखकर அவன் என்ன செஞ்சான் தெரியுமா? उसने क्या कहा? அந்த 5 தாலந்தை வைத்து उस जो 5 तोड़े को लेकर இன்னும் 5 தாலந்தை அவன் சம்பாதித்தான். उसने और 5 तोड़े को कमाए। அந்த பொறுப்புகளை கொடுத்திருந்தான். उस कार्य को उन्हें दिया गया ஒரு था। நாள் எஜமான் திரும்பி வருகிறான். एक दिन स्वामी वापस आता அந்த है। கணக்கவன் கேட்கிறான். उसका जो हिसाब मांगता அவன் है, 5 தாலந்தை வாங்கினவன் 5 तोड़े जो लिया था அவன் 5 தாலந்தை சம்பாதித்தான். उसने 5 और कमा कर दिया। இன்னொருவருக்கு और एक को 2 தாலந்தை அவன் கொடுத்தான். उसको 2 तोड़े दिया गया था। 2 தாலந்தை சம்பாதித்து और வாங்கினவன் जिस 2 लिया गया था அவன் வேறு 2 தாலந்தை அவன் சம்பாதித்தான். उसने 2 और तोड़े कमा लिए। இன்னொருவருக்கு और एक व्यक्ति ஒரு தாலந்தை கொடுத்தான். एक तोड़ा उसको दिया गया। ஒரு தாலந்தை வாங்கினவனோ एक तोड़ा जिसको दिया गया அந்த தாலந்தை उस तोड़े को அதை விருத்தி அடைய செய்யாமல் उसको न बढ़ाते हुए அதை சரியான முறையில உபயோகப்படுத்தாமல் उसको ठीक रीति से उपयोग न करते அதை हुए எப்படி சம்பாதிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி தெரியாமல் उसे कैसे कमाना है करके न जानते அவன் हुए பயந்துட்டான். वो डर गया। ஒரு சுவாமி வருவாரே, स्वामी आएगा, கணக்கு கேட்பாரே, हिसाब मांगेगा, என்ன செய்யலாம், क्या करेंगे, ஒண்ணு தானே இருக்குது एक ही तो है। அப்படின்னு சொல்லி ऐसा कहता அவன் है। என்ன செஞ்சான் தெரியுமா? क्या करता है? அவன் நிலத்துல புதைத்து போட்டு वो விட்டான். नीचे मिट्टी के नीचे दबा दिया। அல்லேலூயா. हालेलुया। எஜமான் வந்து கணக்கு கேட்காரு. स्वामी आकर हिसाब पूछता है। ஒருவனா கூப்பிடுதாரு, एक को पुकारता உன் है, 5 தாலந்தை தந்தனே. मुझे मैंने 5 तोड़े दिया 5 था। தாலந்தை வாங்கினவன் 5 तोड़े दिया हुआ, 5 தாலந்தை वो 5 तोड़े அவன் அழகா காட்டினான். अच्छी रीति से दिखाया। 2 தாலந்தை கேட்டாரு. और जो 2 दिया था उससे அவன்கிட்ட पूछा, கணக்கு கேட்காரு. उससे हिसाब मांगा। அவன் வேற 2 தாலந்தை उसने और 2 तोड़े சோத்திரம் அழகாக கொடுக்கிறான். अच्छी तरह से दिया। ஆனா 1 தாலந்தை வாங்கின கணக்கு கேட்கும் பொழுது लेकिन जब एक तोड़े को दिया हुआ அவன் व्यक्ति से சொல்லுதா, मांगा, वो कहता है, சுவாமி स्वामी நான் பயந்து போய் मैं डर कर அது நிலத்தினால புதைத்து வைத்து उसे விட்டேன். पृथ्वी के नीचे मैंने दबा कर रख दिया। यजमान जो स्वामी அது கேட்ட உடனே उसे सुनते ही கடும் கோபம் வந்துட்டு बहुत ही गुस्सा आया। கோபம் வந்து சொன்னாரு, गुस्सा कर कहा, பொல்லாதவனும் दुष्ट व्यक्ति சோம்பேறியுமான ஊழியக்காரன் என்று और சொல்லி आलसी सेवक करके அவருடைய கையில் இருந்ததான தாளந்து எடுத்து उसके हाथ के तोड़े भी लेकर யாரு 10 தாளந்து இருக்கிறதோ जिसके पास 10 तोड़े थे அவனுக்கு கொடுத்தா. उसको दे दिया। ஹalleluya, हालेलुया, ஹalleluya. हालेलुया। அந்த ஊமை மூலமாக इस जो दृष्टांत के நம்ம द्वारा என்ன அறிந்து கொள்ள முடியும்? हम क्या जान सकते இந்த हैं? ஒரு தாளந்து வாங்கினவன் இருக்கிறான் அல்லவா, एक तोड़े लिया हुआ व्यक्ति जो है அவன் என்ன செய்தான் என்று वो சொன்னால் क्या किया? அதை சம்பாதிக்க அவன் விரும்பவில்லை. उसे और कमाने के न चाहा। சோத்திரம். அதாவது எஜமானுடையதான இருதயத்துக்கு பிரியமான வாழ்வு ஒப்பு கொடுக்கவில்லை. जो स्वामी के हृदय के योग्य रीति से जीने के लिए अर्पण அந்த नहीं किया। எஜமானுக்கு ஒரு சரியான கணக்கை கூட்டி கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்ல முடியவில்லை. स्वामी को हिसाब अच्छी तरह से बढ़ाकर दिखाना है करके नहीं जाना। அவன் என்ன செய்தான் என்று சொன்னால் क्या कहा? அவன் தரையிலே நிலத்திலே அவன் புதைத்து வைத்து விட்டான். पृथ्वी में उसने दबा कर रख दिया। எஜமானுக்கு கோபம் வந்துச்சு. तो स्वामी को गुस्सा आया। பிரயோஜனமான ஊழியக்காரன் இவனை उपयोगी सेवक को புறம்பான இருளிலே தள்ளி போடுங்கள். अंधकार में इसको धकेलो। அங்கே அழுகையும் वहाँ पर रोना பற்கடிப்பு உண்டாயிருக்கும் என்றால் दांत पीसना ही होगा। 25:30 சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது. ऐसा 25वां मत्ती का अध्याय में कहा गया है। பாருங்க, देखिए அவனுக்கு அந்த சுறுசுறுப்பு இல்ல. उसके अंदर कोई जागरूकपन नहीं थी। கொடுத்த அந்த தாளந்தை दिया हुआ जो कोड़े को அவனால சோத்திரம் பெருக்க வைக்க முடியவில்லை. उसको बढ़ोतरी नहीं कर पाया। அப்ப அவனுக்குள்ளாக उसके अंदर ஒரு பயம் காணப்பட்டது. भय था। ஒரு வேலை எப்படி செய்ய முடியும்? काम कैसे करना है? சிலவங்க பாருங்க, कुछ लोग को देखिए புதிய வேலையை படிக்க போவாங்க. नया काम सीखने அந்த जाएंगे। பயத்தினாலேயே वहाँ पर भय के कारण 2 நாள் 3 நாள் வேலை பார்ப்பாங்க. 2 या 3 दिन काम 3 நாள்ல करेंगे। கேட்பாங்க மனைவி, तीसरे दिन पत्नी पूछेगी ஏன் வேலைக்கு போகல? क्यों काम पर नहीं வேலை गए? செய்ய பயமா இருக்குது. काम करने के डर लगता है। சோம்பேறி என்ன செய்வா தெரியுமா? आलस क्या करेगा? அவங்க பயப்படுவாங்க. वो डरेगा।
रहेगा। ஹalleluya Hallelujah. அவனுடைய வாழ்க்கை அப்படியே ஒரு குணம் காணப்பட்டது. जीवन में ऐसा गुण रहता है, அவன் உயர்வை தேடி அவன் போகவில்லை. उसको ऊंचाई की ओर ढूंढ कर नहीं சோதர गया। உயர்வான ஒரு சோதர காரியத்தை செய்ய அவனுக்கு விருப்பம் இல்லை. ऊंचाई के कार्य करने के लिए उसको मन नहीं। எஜமான் கடும் கோபம் கொண்டார். स्वामी बहुत ही गुस्सा हुआ। இன்றைக்கும் आज भी நம்மளை குறித்து हमें देखकर நம்முடைய பரம எஜமான் हमारे स्वर्गीय स्वामी அவர் என்ன நினைக்கிறார்? क्या सोचता है, அவருக்கு நம்ம பிரியமுள்ள ஒரு வேலைக்காரனா இருக்கிறோமா? उसके लिए प्रिय हम जो दास होते हैं क्या, நாம் அவருக்கு உகந்த ஒரு வேலைக்காரனா இருக்கிறோமா? उसके योग्य दास हम है क्या, நம்முடைய வாழ்க்கையிலே हमारे जीवन में நாம் சுறுசுறுப்பாக ஜாக்கிரதையாக காணப்படுகிறோமா? हम जागरूक रीति से दिखाई ஒரு पड़ते நாள் அவர் हैं। வர போறாரு. एक दिन वो आएगा। ஐயோ நம்மளுக்கு எவ்வளவு ஒரு பயம் இருக்கிறது. हाय हमारे अंदर कितना भय, ஆண்டவரே परमेश्वर நமக்குள்ள ஒரு பயம் வேண்டுமே. हमारे अंदर वो भय चाहिए। நான் ஒரு கணக்கு நான் உமக்கு முன்னாடி நிற்க வேண்டுமே. आपके सामने हमें खड़ा होना என்ன है। கொடுத்த தாளந்து எவ்வளவு கொடுத்திருக்கிறீர். हमें आपने इतने सारे तोड़े दिए हैं, என்ன பாடல் படிக்க தாளந்தை கொடுத்தீரே. हमें गीत गाने के लिए आपने अनुग्रह दिया ஆனால் है। இன்றைக்கு लेकिन आज இந்த பாடல் படித்த வாயினாலே गीत गाने वाली जुबान से எல்லாவற்றையும் இழந்து விட்டேனே. सब कुछ हमने खो दिया। சிகரெட் குடித்து கொண்டு இருக்கிறேனே. हम सिगरेट फूंक रहे இந்த हैं। பாடல் படித்த வாயினாலே जो गीत गाए हुए जुबान சோதரன் से சாராய குடித்துக் கொண்டு இருக்கிறேனே. दारू पी रहे हैं। இந்த வாழ்க்கை பின்மாற்றமா மாறிக்கொண்டு இருக்கிறதே. हमारे जीवन पिछले की ओर चली गई है। ஒரு பயம் இருக்கிறதா? एक भय है ஒரு क्या, நாள்ல एक दिन में நம்மிடத்துல கணக்கு கேட்பாரு. हमारे पास आकर हिसाब இந்த मांगेगा। பயம் இருக்கிறத ஜனங்களுக்கு वो भय लोगों के अंदर है சில क्या, பேருக்கு worship பண்ண நல்லா கிருபை कुछ கொடுத்திருக்கிறார் लोगों को ஆண்டவர். वर्शिप करने के लिए अच्छा अनुग्रह दिया ஆனால் है, लेकिन அந்த ஆராதனை வழியாக आराधना के द्वारा இந்த ஜனங்கள் ரட்சிக்கப்பட்டு இருக்கிறார்களா? आप लोग उद्धार पाए हैं क्या, அந்த ஆராதனையை பெருக்கத்திலே கொண்டு வந்திருக்கிறோமா? उस आराधना को बढ़ोतरी में ले आए हैं அந்த क्या, ஆராதனை கொடுத்த தாளந்த उस आराधना के लिए दिया நம்ம हुआ जो சரியாக तोड़े हैं, பயன்படுத்தி இருக்கிறோமா? ठीक तरह से उपयोग करते हैं क्या, எப்படி இருக்கிற வாழ்க்கை हमारे जीवन कैसी है, நம்ம கொஞ்சம் யோசித்து பார்க்க उसे जरा வேண்டும். सोच कर देखिए। ஆலயத்துக்கு வந்த கால்கள் कलीसिया में आए हुए पैर இன்றைக்கு आज வேற எங்க ஓடிக்கொண்டு இருக்கிறது. कहीं और दौड़ रहा है, சினிமா கோட்டைக்கு நேரம் ஓடிக்கொண்டு இருக்கிறது. सिनेमा के पीछे दौड़ रही है, சோதரா சாராயம் குடிப்பது கடைக்கு நேரம் ஓடிக்கொண்டு இருக்கிறது. दारू के अड्डों के पीछे दौड़ रही है। ஆண்டவர் கொடுத்த தாளந்து எங்கே? परमेश्वर ने दिए हुए तोड़े அவர் कहाँ, கொடுத்த கிருபைகள் எங்கே? उसने दिए हुए अनुग्रह இது कहाँ है? ஒன்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும். एक बात आपको समझना ஆண்டவர் है, ஒரு மனுஷனிடத்துல परमेश्वर एक व्यक्ति के ஒரு पास தாளந்தையோ एक तोड़े को, ஒரு கிருபைகளையோ एक अनुग्रह को அவர் கொடுப்பார் என்று अगर சொன்னால் वो देता है तो அவர் கொடுத்ததுதான். वो दे दिया है, அவர் கொடுத்த தாளந்தையோ वो दिया हुआ जो कार्य को கொடுத்த கிருபைகளையோ दिया हुआ अनुग्रह மீண்டும் को எடுக்கிறவர் அல்ல. कैसे नहीं அப்ப लेता எப்படி है, இழந்து போகிறார்கள்? कैसे खो सकते எப்படி हैं, இது கைவிடப்படுகிறது? कैसे वो खो दिया எப்படி जाता है, எப்படி நம்முடைய கையை விட்டு நழுவி कैसे போகிறது? हमारे हाथों से निकल जाती है, ஜாக்கிரதை இல்லை, जागरूक नहीं है, சுறுசுறுப்பு இல்லை, अच्छी जागरूक पर नहीं है, அசதி, जो आलस पर சோம்பல் आलस पर எல்லாவற்றையும் இழந்து ये सब कुछ இன்னைக்கு சாத்தான் शैतान அநேகரை வஞ்சித்துக் கொண்டு अनेक இருக்கிறான். लोगों को भरमा रहा है। எச்சரிக்கையா இருக்க வேண்டும். जागरूक रहिए, நாம் ஜாக்கிரதையா வாழ வேண்டும் हमें என்று சொல்லி जागरूकता से जीने இந்த के கடைசி लिए வாரத்துல इस अंतिम பரிசுத்த सप्ताह में ஆவியானவர் पवित्र आत्मा உங்களோடு கூட இருந்து பேசிக் கொண்டு இருக்கிறார். आपके साथ बातें कर रहा எழும்பு है, சியோனே, उठ सियोन, உன் வல்லமை தரித்துக் கொள். तेरे सामर्थ को धर ले, எழும்பு எழும்பு उठ उठ सियोन, சியோன் எழும்பு. सियोन तू उठ, கர்த்தர் சொல்லுறார் இன்னைக்கு. परमेश्वर आज कहता எப்படி है, உன்னோட கர்த்தர் பேசிக் கொண்டு परमेश्वर आज இருக்கிறார். आपसे बातें कर रहा இன்றைக்கு है, நீ எழும்பு. आज तू उठ, இருக்கிற இடத்துல இருக்காதே. जहाँ पर तू है वहाँ ஓ, पर मत இருக்கிற रह, அறையில இருக்காதே. रहने वाले घर में मत रह, இயேசுவுக்காக எழும்பு. यीशु के लिए उठ, சுவிசேஷம் சொல்ல எழும்பு. सुसमाचार के लिए उठ, ஜனங்களுக்காக ஜெபிக்க விடியற்காலமே எழும்பு. लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए उठ, தேசம் அழிந்து கொண்டு இருக்கிறது. देश नाश हो रहा है, தேசம் வியாதியினால் இன்னைக்கு பாதிக்கப்பட்டு கொண்டு देश बीमारी के இருக்கிறது. कारण नाश हो रहा இன்னைக்கு है, தேசத்துல வியாதியினால் ஜனங்கள் அழிந்து கொண்டு आज இருக்கிறார்கள். देश में लोग बीमारी के कारण नाश हो रहे ஜெபிக்க हैं, ஆட்கள் இல்லை. प्रार्थना करने लोग नहीं, சுவிசேஷம் சொல்ல ஆட்கள் இல்லை. सुसमाचार बांटने लोग ஆண்டவர் नहीं, இன்னைக்கு சொல்லுகிறார். परमेश्वर आज कहता சோம்பலை है, விட்டு எழும்பு. आलसपन से उठ, எழும்பு उठ பிரகாசிக்கும்படியாக कर प्रकाशित होने के உங்களை அவர் लिए அழைக்கிறார். आपको पुकारता है। ஜீசஸ் हालेलुया, கர்த்தர் நல்லவர். परमेश्वर अच्छा है, அவர் கொடுத்த தாளந்தை उसने दिए हुए तोड़े को நம்ம சரியான முறையில हम ठीक रीति से நாம் பயன்படுத்த हमें வேண்டும். उपयोग करना है, கர்த்தர் அதை இன்றைக்கு விரும்புகிறார். परमेश्वर आज वो चाहता है। Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, அந்த ஒரு தாளந்தை சம்பாதிக்க முடியாதவர் एक तोड़े को न कमाने அவன் वाला, எஜமான் சொன்னாரு, स्वामी ने कहा, அதை எங்க தூக்கி போடுங்க? कहाँ पर डालो, அழுகையும் जहाँ पर रोना, அற்கடிக்கும் இடத்தை தூக்கி போடுங்கள். दांत पीसने का जगह वहाँ पर அந்த डालो, இருள தூக்கி போடுங்கள். उस अंधेरे में उठाकर डालो, எவ்வளவு ஒரு பயங்கரம், कितना भयंकर, எவ்வளவு ஒரு சோதரம்
ஒரு வேதனையான காரியம். इतनी वेदना से भरी ஆண்டவர் कहानी। நம்மோடு பேசுகிறார். परमेश्वर आज आपसे बातें कर रहा है। இது ஒரு மனுஷனுடைய சத்தம் அல்ல. कोई मनुष्य की आवाज नहीं है। பரிசுத்த வார்த்தையை கேட்டுக்கொண்டு कोई இருக்கிறீர்கள். आत्मा की शब्द को सुन रहे அன்னைக்கு हैं। பேசிக்கொண்டு वो இருக்கிறார். आज बातें कर रहा है। எழும்புங்க, उठो, ஏதாவது செய்ய வேண்டும். कुछ ना कुछ करना है। ஒரு காலத்துல பாடலை படித்து एक இருக்கலாம், समयों में गीत गाए थे। ஜெபிப்பதற்கு ஜெபாவிகள் இருந்திருக்கலாம். प्रार्थना करने के लिए प्रार्थना की आत्मा இன்றைக்கு அந்த ஆவி எங்கே? आज वो आत्मा कहाँ அந்த है? தாளந்து எங்கே? और सारे अनुग्रह कहाँ அந்த है? கிருபை எங்கே? वो अनुग्रह कहाँ அந்த है? கேள்வியோடு கூட उस प्रश्न के இந்த साथ கர்த்தர் கூட பேசிக்கொண்டு परमेश्वर இருக்கிறார். आज आपसे बातें कर रहा है। தேவனுடைய பிள்ளைகளே, परमेश्वर के लोगों, நாம் எதில ஜாக்கிரதையா இருக்க आप வேண்டும். किसके लिए जागरूक करना அவர் है? கொடுத்ததான उसने दिया அவர் हुआ, தாளந்து மேல उसके जो நம்ம अनुग्रह है, ஜாக்கிரதையாக இருக்க हमें வேண்டும் जागरूकता से என்று रहना है। கர்த்தர் இந்த உங்களோடு பேசிக்கொண்டு இருக்கிறார். परमेश्वर आज आपसे बातें कर रहा है। ஹalleluya, हालेलुया। ஹalleluya. हालेलुया। சில பேரை பாருங்க, कुछ लोगों को देखिए, அதாவது பவுல் ஒரு காரியத்தை சொல்லுகிறார். पौलुस एक कार्य को कहता அதாவது है, ஊழியக்காரர்களை சொல்லுகிறார். सेवक के बारे में அந்த कहता है, வீணரான ऐसी जो तुच्छ रीति से அலுவலங்களை வைக்க கூடாது. ऐसे कोई जगह पर नहीं जाना है। வீணான காரியங்கள், जो न चाहने वाले அதாவது कार्य, வீணான அலுவலர்கள், व्यर्थ कार्य, அப்படி காரியத்துல போக கூடாது. ऐसे कार्य में नहीं जाना है। சிலவங்க எப்பவுமே பாருங்க ஊழியம்பாங்க. कुछ लोग सेवकाई कहेंगे, ஆமா, அங்க போனா எங்கேயாவது விசாரிப்பு தூக்கிட்டு இருப்பாங்க. वहां पर जाएंगे तो सोते रहेंगे। ஆமா, ஏதாவது கிரிக்கெட் ஓடுறாங்க. कुछ लोग क्रिकेट खेल रहे ஆமா, हैं, யாராவது என்ன செஞ்சுட்டு இருக்காங்களா? कुछ लोग क्या कर रहे இது हैं, யாருடைய பரவ சில ஊழியக்காரர் இருக்கிறாங்க. किसकी आदत है। कुछ நான் படிக்கிற சமயத்துல पढ़ने वाले समयों में ஆமா ஒருத்தர் கேள்விப்பட்டேன்னா, हम सुने थे, அவர் வீட்டுக்கு போனா वो घर में गए, அந்த வீட்டுல டிவி பார்க்காம இருக்க மாட்டார். उस घर में टीवी के बिना नहीं रहेंगे। அவரு பைபிள் காரியங்களை படிச்சிருந்தாரு. वो बाइबल कॉलेज में पढ़ रहे ஆமா, थे, அவரு போனா जाएंगे तो ஏதாவது வீட்டுக்கு போனா घर पर जाएंगे அது तो கிரிக்கெட் அவருக்கு போதும். क्रिकेट बोले तो काफी है। சரி, கிரிக்கெட்னா போதும் कुछ அவருக்கு. लोगों के लिए क्रिकेट काफी है। ஏதாவது விசுவாசி வீட்டுல कुछ विश्वासी के இல்ல घर தெரிஞ்ச पर வீட்டுல போய் या पहचान वाले के घर உட்கார்ந்துருவாரு पर போய். जाकर बैठ जाएंगे, உட்கார்ந்தா बैठकर அந்த கிரிக்கெட்டை பார்க்காம क्रिकेट को ना देखते हुए அவருக்கு தூக்கம் இருக்காது. उसको नींद नहीं அந்த आएगी। கிரிக்கெட்டை பார்த்து உட்கார்ந்துட்டு क्रिकेट को देखकर बैठकर சோதர அப்படியே சோமலா இருந்துட்டு ऐसी आलसपन के साथ ஏதாவது குடிச்சிட்டோ சாப்பிட்டுட்டோ उसको खा पीकर திரும்பி வருவாங்க. फिर से आएंगे। இப்படி ஊழியக்காரர் இருக்கிறாங்க. इसी प्रकार के सेवक भी இவங்க है। ஆண்டவர் சொல்றாரு, परमेश्वर कहता है, இவங்க எங்க தூக்கி போடுங்க? इनको कहां पर डालो, நரகத்தை தூக்கி போடுங்க, नरक में उठाकर डालो, இருள தூக்கி போடுங்க. अंधेरे में उठाकर डालो। இந்த ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். परमेश्वर कहता है, இது எச்சரிக்கை. ये एक चेतावनी है। ஹalleluya. हालेलुया। இவங்க ஜாக்கிரதை இருக்க வேண்டும் என்று आप சொல்லி लोग जागरूक रहने के लिए ஆண்டவர் இன்றைக்கு விரும்புகிறார். परमेश्वर आज चाहता है, நீங்கள் இருக்கிற இடம் என்ன இடம்? आप लोग रहने वाली स्थान कौन सी है? நான் இருக்கிற இடம் எந்த இடம்? हम रहने वाले स्थान कौन सा நம்மை है? கொஞ்சம் யோசித்து பார்க்க வேண்டும். जरा सोच कर देखना है। Praise the Lord. हालेलुया। சிம்சோனுடைய வாழ்க்கை सिमसोन की जीवन நமக்கு ஜாக்கிரதையா இருக்க வேண்டும் கற்றுக் हमें கொடுக்கிறது. चेतावनी के साथ रहने के लिए सिखाती சிம்சோனை है। குறித்து ஆண்டவருக்கு பெரிய திட்டம் இருந்தது. सिमसोन के बारे में परमेश्वर के लिए बड़ी चाहत ஆண்டவருக்கு थी। பெரிய தரிசனம் இருந்தது. परमेश्वर का बड़ा दर्शन था। அவன் படுக்கை போட்ட இடமோ, और जो जहाँ पर था वो அவன் जगह, இருந்த இடமோ वो रहने वाले स्थान வேசிகளின் இடம். वेश्यों के बीच में எச்சரிக்கை. जागरूक रहिए। கர்த்தர் சொல்லுகிறார், परमेश्वर कहता है, சோம்பேறியே, ये आलस, நீ எவ்வளவு நேரம் படுத்து இருப்பாய்? और कितना सोएगा, எவ்வளவு நேரம் படுத்து இருப்பாய்? और कितना सोएगा, எவ்வளவு தூக்கத்தை எப்பொழுது தூக்கத்தை எழுந்திருப்பாய்? और नींद से कब उठेगा। Praise the Lord. हालेलुया। இந்த தாளந்தை குறித்து हमारी जो तोड़े के बारे में நாம் அதிக கவனமா இருக்க வேண்டும். हमें अधिक जागरूक रहना है। இரண்டாவது பார்க்கலாமா? दूसरा हम देखेंगे பாப்போம். देखेंगे எபிரியர் इब्रानियों की पुस्तक இரண்டாம் அதிகாரம் दूसरा अध्याय 4 वचனம் சொல்லப்பட்டு चौथा இருக்கிறது. वचन में कहा गया है, அடையாளங்களினாலும் चिन्ह के द्वारा, அற்புதங்களினாலும் अद्भुत कार्यों के द्वारा, பலவிதமான பலத்த செய்கைகளினாலும் अनेक प्रकार के बलवंत कार्यों के द्वारा, நம்முடைய சித்தத்தின்படி பகிர்ந்து கொடுத்த பரிசுத்தாவின் வரங்களினாலும் अपनी इच्छा के अनुसार बांट कर देने वाले पवित्र आत्मा के द्वारा, தேவன் தாமே சாட்சி கொடுத்ததுமாய் இருக்கிற परमेश्वरी जिसकी गवाही देता है, இவ்வளவு பெரிதான ரட்சிப்பை குறித்து நாம் கவலையற்று இருப்போமானால் इतनी बड़ी उद्धार के बारे में हम चिंता के बिना रहे तो எப்படி நாம் தண்டனைக்கு தப்பித்துக் கொள்ளுவோம்? कैसे हम दंड से बच पाएंगे। எதை குறித்து ஜாக்கிரதையா இருக்க வேண்டுமா? इसके बारे में जागरूक रहना है। கர்த்தர் கொடுத்ததான ரட்சிப்பை குறித்து நம்ம ஜாக்கிரதையா இருக்க வேண்டும். परमेश्वर ने दिया हुआ उद्धार के बारे में हमें जागरूक रहना है। அந்த ரட்சிப்பை குறித்து நம்ம கவலையற்று இருப்போம் என்று சொன்னால் अगर उस उद्धार के बारे में हम चिंता रहित रहे तो அவருடைய தண்டனைக்கு நாம் எப்படி நம்ம தப்பித்துக் उसके கொள்ளுவோம்? दंड से हम कैसे बच पाएंगे। ஹalleluya. हालेलुया। சோம்பல் உள்ளவன் जो आलस है என்ன சொல்வான் தெரியுமா? क्या कहेगा, நாளைக்கு பார்த்துடலாம், कल देख लेंगे, நாளானது या பார்த்துக்கிடலாம், परसों देख लेंगे, பிறகு
செய்யலாம். बाद में करेंगे। நாம் ஒருவரை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் हम अगर किसी को समझना है तो அவர்களை நீங்க பேசி பாருங்க. उससे हम बातें करके இந்த देखिए। வேலையை நீங்க நாளைக்கு எனக்கு செஞ்சு தரணும். ये काम आप कल करके देना இந்த है। வேலையை நீங்க நாளைக்கு செஞ்சு தரணும். ये काम आप एक दिन में करके देना அவங்க है। என்ன சொல்லுவாங்க தெரியுமா? क्या कहेंगे? நாளாந்து பார்க்கலாம், परसों देख लेंगे, அடுத்த வாரம் பார்க்கலாம், अगले हफ्ता देख அப்படி लेंगे। நாட்களை கடந்து கொண்டே போவார்கள். ऐसा दिन को वो लोग आगे करते அவர்களால रहेंगे। उनसे எந்த சுறுசுறுப்பா வேலை செய்ய कोई முடியாது. भी प्रकार से अच्छी तरह से काम नहीं कर அவர்களால पाएंगे। वो लोग எந்த வேலையும் சரியாக செய்ய முடியாது. कोई भी काम ठीक से नहीं कर ஜோபல पाएंगे। தான் இருப்பான். आलस में ही रहेंगे। ஹalleluya. ஹalleluya. அவர்கள் தான் சொல்லுவார்கள். वैसे ही करेंगे। இங்க சொல்லப்பட்டு यहाँ पर இருக்கிறது, कहा गया है, ரட்சிப்பை குறித்து நம்ம கவலையற்று இருப்போமானால் उद्धार के बारे में अगर हम चिंता नहीं करें நாம் तो தண்டனைக்கு எப்படி நம்ம தப்பித்துக் हम கொள்ளுவோம்? दंड से कैसे बच पाएंगे? ரட்சிக்கப்பட்ட தேவனுடைய பிள்ளை, उद्धार पाए हुए परमेश्वर के लोग, அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட தேவனுடைய பிள்ளை, अभिषेक पाए हुए परमेश्वर के இதை लोग, குறித்து உங்களுக்கு கவனம் இருக்கிறதா? इसके बारे में आपको चिंता है இதை क्या? ரட்சிப்பை இழந்து விட்டேனே, इस उद्धार को हमने खो दिया है, பெற்றுக்கொண்ட அபிஷேகத்தை இழந்து விட்டேனே, पाए हुए अभिषेक को खो दिया அதை है। குறித்து என்னைக்காவது தேவ சமூகத்தில் அழுததுண்டா? उसके बारे में कभी परमेश्वर के सम्मुख में रोए हैं? என்னைக்காவது மனஸ்தாபப்பட்டதுண்டா? कभी मन पछताव किए हैं क्या? என்னைக்காவது கவலைப்பட்டு இருக்கிறீர்களா? कभी चिंता किए हैं क्या? என் வாழ்க்கையில ஜெபம் இல்லையே, मेरे जीवन में प्रार्थना नहीं है, பரிசுத்த ஆவியானவருடைய நிறைவு இன்றைக்கு எனக்கு இல்லையே, पवित्र आत्मा की भरपूरता नहीं நான் है, ரட்சித்த அந்த காரியத்தை மறந்து விட்டேனே. उद्धार पाए हुए कार्य को हमने भूल गए। என்றைக்காவது कभी ஒரு நிமிஷமாவது एक मिनट யோசித்திருக்கிறோமா? सोच कर देखे हैं அதை क्या? குறித்து கவலை இருக்கும் என்று சொன்னார். उसके बारे में चिंता नहीं है। தெளிவாக வேதம் சொல்லுகிறது, अच्छी तरह से शास्त्र कहती है, தண்டனைக்கு दंड से தப்ப முடியாது. नहीं बच पाएंगे। ஆமென். हालेलुया। அது யாராக இருக்கலாம், वो कोई भी हो सकता है, எப்பேற்பட்ட மனுஷனாக किस இருக்கலாம், प्रकार का मनुष्य भी हो सकता है, பணக்காரனா இருக்கலாம், पैसे वाला हो सकता है, ஏழையா இருக்கலாம், गरीब हो सकता है, யாராக இருந்தாலும் कोई भी हो, ஊழியக்காரனா இருக்கலாம். सेवक भी हो, ஆனா ஊழியத்தை குறித்துதான लेकिन सेवकाई के बारे கவலையற்றிருப்போம் என்று में சொன்னார். अगर हम चिंता रहे तो, மந்தைகளை குறித்ததான भेड़ों के बारे में கவலையற்றிருப்போம் என்று चिंता சொன்னார். रहित रहे तो நம்முடைய வாழ்க்கையில हमारे जीवन அவருடைய में தண்டனைக்கு எப்படி தப்பிக்க முடியும்? उसके दंड से कैसे बच पाएंगे? ஹalleluya. हालेलुया। இந்த ஆண்டவர் ரட்சித்திருக்கிறார். हमारा परमेश्वर ने उद्धार दिया, வெறுமையா ரட்சிக்கவில்லைங்க. ऐसे व्यर्थ में उद्धार नहीं ஏதோ किया, நம்ம அவருக்கு பணம் கொடுத்தோம், ऐसे हम उसको पैसे दिए, ரட்சிக்கப்பட்டோம், उद्धार पाए, அப்படி அல்ல. ऐसा नहीं। எந்த மனுஷனையும் कोई भी मनुष्य அவர் को ரட்சித்திருக்கிறார் என்று சொன்னால் अगर उसने उद्धार किया அவர் என்ன तो செய்திருக்கிறார் என்று தெரியுமா? क्या करता है? தன்னுடைய சொந்த ரத்தத்தை अपने खुद के लहू से அவர் சிந்தி இருக்கிறார். उसने बहाया है। ஆமென். आमेन। சொந்த சரீரத்தை அவர் விலைக்கரையும் கொடுத்திருக்கிறார். खुद के शरीर को उसने मूल के रूप में இது दिया யோசித்து है। பார்க்கிற விஷயம் இது. ये सोच कर देखने वाली बात நீங்க है। கொஞ்சம் சிந்தித்து பாருங்கள். आप जरा सोच कर देखिए, ஒரு ஏதோ ஒரு வீடு நீங்க வாங்குகிறீர்கள், कोई आप एक घर खरीदते हैं, அது வாங்குவதற்கு खरीदने के लिए எவ்வளவோ பிரயாசப்படுகிறீர்கள். कितने प्रयास करते हैं, அதை வாங்குவது அப்படியே பணத்தை புரட்டி उसे खरीदने के लिए ऐसा पैसे को அந்த வீட்டை लेकर வாங்குகிறீர்கள், घर को खरीदते हैं, இல்ல லோன் எடுத்து வீட்டை या வாங்குகிறீர்கள். लोन लेकर घर ஆனா அந்த खरीदते हैं, வீடானது लेकिन वो घर இது புயலினாலேயோ कुछ कार्यों के निमित्त காற்றினாலேயோ या हवा के निमित्त மழையினாலேயோ या बारिश के அது निमित्त சேதம் அடைந்து விட்டால், अगर वो बिगड़ जाता है, அது तो, இடிந்து விட்டால் अगर गिर जाता है எவ்வளவு तो வேதனைப்படுகிறோம். कितनी वेदना उठाएंगे? ஊழியர்கிட்ட சொல்லி போன் பண்ணுகிறோம். सेवक को बोलकर फोन करेंगे, ஆமா குடும்பம் ஃபுல்லா போன் பண்ணி சொல்லுகிறோம். परिवार पूरा पूरा कहेंगे, எல்லாத்தையும் சொல்லி விடுகிறோம். सबसे कहेंगे எங்க வீடு இடிந்து விட்டது, हमारा घर गिर गया, எங்க வீடு சேதம் அடைந்து விட்டது, हमारा घर गिर गया, எவ்வளவு கவலைப்படுகிறோம். कितना चिंता करेंगे। அதே போல इसी तरह ரட்சிக்கப்பட்ட தேவனுடைய பிள்ளைகள் उद्धार पाए हुए परमेश्वर के ரட்சிப்பை लोग, இழந்த பிறகு उद्धार को खोने के அதே बाद குறித்து இது விதமா கவலை இருக்கிறதா? उसके बारे में चिंता है क्या? உலக காரியத்தை குறித்து கவலை இருக்கிறது, संसार के बारे में चिंता है, உலக பொருளை குறித்து கவலை இருக்கிறது. संसार की चीजों के बारे में ஆனா चिंता है, இவ்வளவு பெரிதான लेकिन इतनी बड़ी ரட்சிப்பை குறித்து उद्धार के बारे ஒரு में கவனம் இல்லையே, कोई चिंता है ஒரு क्या? ஜாக்கிரதை இல்லையே, कोई जागरूक नहीं ஒரு है, சோம்பல் காணப்படுகிறதே. आलसपन है, அவர்கள் எப்படி தப்பித்துக் கொள்ள वो लोग முடியும்? कैसे बच पाएंगे? அவர் ஒரு நாள் கடந்து வர तो போகிறார். एक दिन आएगा, நீங்க சொல்லுவீங்க, आप लोग कहेंगे நான் சின்ன வயசுல இருந்தே கேட்க, हम बचपन से ही सुन रहे நீங்க हैं, பூட்டி சொன்னா, हमारे दादी ने நீங்க कहा பூட்டாங்க கூட சொன்னா, और दादा ने कहा ஆமா இயேசு வாரா இயேசு வாரா இயேசு வராரு, यीशु आ रहा है करके என்னைக்கு कहा। வராரு? अभी कब आ रहा है? இப்போ அதே சொல்லிட்டு இருக்கீங்க. अभी भी वही कह रहे ஒரு हैं, நாள் வர போறாரு. एक दिन आएगा, அவர் சொல்றாரு, वो कहता है இதோ நான் திருடனை போல வருகிறேன், चोर के समान आता हूँ, சீக்கிரம் வருகிறேன். शीघ्र आता हूँ, எப்போ ஒரு நாள் சொல்ல कब முடியாது. आएगा नहीं बोल அந்த पाएंगे। சமயத்துல उस समय में நம்ம
ரட்சிப்பை குறித்து उद्धार के बारे நாம் में கவலையற்று இருப்போம் என்று अगर சொன்னார் चिंता रहित அவருடைய रहे தண்டனைக்கு उसके दंड से யாரும் தப்பித்துக் கொள்ள முடியாது, कोई भी बच नहीं पाएगा, ஓட முடியாது. कोई भी दौड़ नहीं पाएगा। Praise the Lord. हालेलुया, ஹalleluya. हालेलुया। ஒரு சம்பவத்தை உங்களுக்கு சொல்ல ये விரும்புகிறேன். संभव आपको बताना चाहते இந்த हैं। சம்பவம் ये संभव உங்களுக்கு கொஞ்சம் சிரிப்பாகவே இருக்கும். आपको थोड़ा हंसी दिलाएगी। அதாவது பிசாசுகளின் கூட்டாளியானவன், शैतान की जो एक मंडली है, அதாவது அவங்க கூட்டம் இருக்குது, उनकी एक मंडली है। எப்படி ஒரு சபையில ஒரு கமிட்டி இருக்கிறதோ, जैसा एक कलीसिया में कमेटी இல்ல होता है, பாஸ்டர் கமிட்டி இருக்கிறதோ, पास्टर की कमेटी होती है, அப்படிதானா? ऐसे ही है। வீட்லயே கமிட்டி இருக்கும். और सब जगह में कमेटी होती அப்படி है, ஒரு கமிட்டி இருக்குது. ऐसा उनका कमेटी அந்த है। பிசாசுகளின் தலைவன் சாத்தான். जो शैतानों का जो लीडर है वो एक शैतान, அவன் பெரியவன். वो बड़ा, அவன் ஒரு அந்த கமிட்டியை கூப்பிட்டு वो अपनी कमेटी को बुलाकर அவன் சொன்னானா, उसने कहा, அதாவது எப்படி எப்படின்னா, तो कैसे कहा, ஒரு தேவனுடைய பிள்ளைகளை விழ வைக்கணும். परमेश्वर के लोगों को गिराना है। அது எப்படி விழ வைக்கலாம்? कैसे गिरवाए, இல்ல அவங்கள அழிக்கணும், या उनको नाश करना है, அவங்கள கொல்லணும். उनको मारना है, அது எப்படி அழிக்கிறாங்க டிஸ்கஸ் பண்ணி கொண்டிருந்தான். कैसे उनको मार पाएंगे करके डिस्कस कर அது ஒரு பிசாசு उसमें एक शैतान எந்திரிச்சு நின்னுச்சான். उठकर खड़ा हुआ, அது சொல்லிச்சான், उसने कहा, காட்டு விலங்குகளை ஏவி जंगली जो जानवरों को उनके खिलाफ அவர்களெல்லாம் கொன்று விடுங்க அப்படின்னுச்சான். उनको मार देंगे कहा। சரிப்பா நீ உட்காரு. ठीक है बैठ, அவன் உட்கார்ந்துட்டான். वो बैठ गया। இன்னொரு பிசாசு நெஞ்சிலுமே எதிர்த்து ஆரம்பிச்சிட்டான். दूसरा शैतान छाती फाड़कर कहा, அவன் சொன்னானா, वो कहा, கிறிஸ்தவர்கள் கப்பல்ல போய் கொண்டு இருப்பாங்களா, मसीह लोग जहाज में जा रहे हैं, இல்லனா எங்கேயாவது பஸ்ல போய் கொண்டு இருப்பாங்களா, या फिर कोई बस में जा रहे हैं, நான் அந்த பஸ்ஸ புரட்டி मैं தள்ளிடுவேன், उस बस को गिरा दूंगा, இல்ல கப்பல்ல புரட்டி தள்ளிடுவேன், या फिर जहाज को गिरा दूंगा, அவர்களை கொல்லலாம் என்று அப்படி சொன்னதான். उनको ऐसे मार सकते हैं करके कहता था। இப்படி ஒவ்வொன்றும் ஒரு விதமான காரியங்களை சொல்லிக் கொண்டு ऐसा இருக்கிறது. हर एक शैतान हर एक कार्य करता था। கடைசியாக अंत में ஒருத்தன் இருந்துச்சா பிசாசு, एक शैतान उठा, இவன் பயங்கரமா இருந்தான். ये बहुत भयंकर था, இவன் பயங்கரமா பார்த்த உடனே भयंकर रीति से देखते அந்த ही தலைவனே பயந்துட்டான். वो लीडर ही डर गया, எப்ப நம்மளுடைய பெரியவனா இருப்பான் போலுக்கு, हमसे बड़ा होगा ये, சரிப்பா நீ சொல்லு, ठीक है तू बोल, என்ன காரியம் சொல்லு. क्या कार्य है बोल। அவன் சொன்னானா, वो कहा, அவன் சொன்னான், கடைசி அவன் சொன்னான், अंत में उसने कहा, மனிதனை मनुष्य को நான் சோம்பல் உள்ளவனாக்கி मैं आलसी बनाकर ஆத்துமா ரட்சிப்பை குறித்து आत्मा की उद्धार के बारे में को चिंता रहित நீ बनाकर, நிர்விசாரமா இருக்கும்படியாக ऐसी चिंता रहित उसको रहने நீ के लिए, ரட்சிக்கப்பட उद्धार रहने के இது लिए நாள் இருக்குது என்று சொல்லி और दिन है நீ करके பிறகு மனம் திரும்பிக் கொள்ளலாம் என்று சொல்லி बाद में मन फिरा सकता நான் है, சொல்வேன் என்றது. मैं कहेगा, இதை கேட்ட உடனே ये सुनकर ही அந்த தலைவனுக்கு वो लीडर को சந்தோஷம் வந்துட்டு आनंद आ गया, சபாஸ் கைகளை தட்டுங்க, शाबाश ताली बजाओ, எல்லாரும் கைகளை सब தட்டுகிறார்கள். ताली बजा रहे हैं, அல்லேலூயா. हालेलुया। அப்ப அந்த சாத்தான் वो शैतान சொல்லிச்சான், कहा, அவனை மிகவும் பாராட்டினான். उसे बहुत ही நீ சொன்னது शाबाश correct. दिया, तूने बोला वो ठीक है। அல்லேலூயா. हालेलुया। ஒரு மனுஷனை एक मनुष्य को அழிக்கணும் என்று சொன்னான். नाश करना அவன் होगा, ரட்சிப்பை குறித்து அவன் கவலை இல்லாமல் ஆக்க வேண்டும். उद्धार के बारे में उसको चिंता இன்னைக்கு नहीं இதுதான் करना। आज यही அநேகரை சாத்தானுக்கு செய்து கொண்டு இருக்கிறான். अनेक समयों में शैतान पूरा कर இந்த रहा है। வசனத்தை கேட்டோடு இருக்கிற வாலிபனே, इस वचन को सुनने वाले जवान, ரட்சிக்கப்படாத தேவனுடைய பிள்ளையே, उद्धार न पाए हुए परमेश्वर இன்னைக்கு के लोग, உங்களையும் आज आपको இப்படியாக சாத்தான் சொல்லிக் கொண்டு इस இருக்கிறான். प्रकार से शैतान कह रहा है, அளவு ரட்சிக்கப்பட்டுள்ள, बाद में उद्धार पा लेंगे, ஆமா இப்பதான் இந்த டைம் இருக்குது, अभी बहुत समय बाकी है, இப்பதான் சின்ன வயசு, अभी छोटा उम्र है, சின்ன வயசுல என்ஜாய் எப்படி என்ஜாய் பண்ணலாம், छोटा उम्र में मजे करना है, சின்ன வயசுல இப்படி விளையாடலாம், என்னைக்கு விளையாடலாம். आज नहीं खेले तो कब அவன் खेलेंगे। இன்னைக்கு சாத்தான்ல சொல்லிக் கொண்டு இருக்கிறான். आज शैतान ऐसे ही कहता சின்ன है, வயசு வந்துரும், छोटा उम्र आ गया, டீனேஜ் வயது வந்துரும், टीनेज ஒரு उम्र आ வாலிப गई, வயதுல வந்துருவாங்க. जवानी का उम्र आ गया, சாத்தான் சொல்லுவான், शैतान இது बोलेगा, வாலிப வயசுப்பா, जवानी का उम्र है, மிந்தி என்ஜாய் பண்ணதோட पहले जैसा एंजॉय இன்னும் किया நல்ல என்ஜாய் பண்ணு நீ, और अच्छे से एंजॉय कर, இதான வாழ்க்கை यही जीवन है। சொல்லுவாங்க. कहेंगे, खाओ खाओ पियो मरो, और पीकर मरो, ஐசா இப்படிதான் வாழ்க்கை அப்படிம்பாங்க. यही जीवन ऐसा कहेंगे। வாலிப வயசு வந்த உடனே जवानी का उम्र आते ஒரு ही சாத்தான் சொல்லுவான், शैतान कहेगा, திருமணம் இருக்குல, திருமணம் முடிச்சுக்கலாம் முதல்ல, बाद में विवाह पहला कर लेंगे, என்ஜாய் திருமணம் முடிச்ச வாழ்க்கையில என்ஜாய் பண்ணலாம், विवाह कर जीवन में बिताएंगे, நம்ம எல்லா இந்தியா சுத்திட்டு வரலாம் திருமணம் முடிச்ச பிறகு, विवाह करने के बाद पूरा इंडिया घूम कर आएंगे, ஹனிமூன் போகலாம், हनीमून ரொம்ப जाएंगे, சந்தோஷம் சொல்லுவான். சாத்தான் சொல்லுவான், शैतान बोलेगा, எல்லாம் சுத்திட்டு வாப்பா, सब कुछ घूम फिर कर அதுக்கு आ, ரட்சிக்கப்படலாம் நீ. उसके बाद उद्धार पा लेंगे। பிரைஸ் அல்லாஹ். இப்படியே காலத்தை கழித்து கொண்டே போவாங்க. ऐसे समय को बिताते இது யார் जाएंगे। கொண்டு வர காரியம் தெரியுமா? कौन लेकर आता இன்னைக்கு है? சாத்தான் ஜனங்களை இன்னைக்கு வஞ்சித்துக் கொண்டு आज இருக்கிறான். शैतान लोगों को भरमा रहा है। என்ன நீ சோத்திரங்க, क्या धन्यवाद धन्यवाद, என்ன நீ பைபிளை சர்ச்சு கொண்டு போயிட்டே இருக்கா, क्या हमेशा शास्त्र को எப்ப பார்த்தாலும் ஜெபித்துக் கொண்டு இருக்கிறிய, क्या हमेशा प्रार्थना करता என்னப்பா है, நீ क्या है, கொஞ்சம் நீ கொஞ்சம்
விளையாடு கொஞ்சம் थोड़ा खेल तू, கொஞ்சம் உலகத்தை பாரு. थोड़ा संसार को देख। இதனைக்கு சாத்தான் ये शैतान அநேகரை अनेकों அந்த ரட்சிப்பை குறித்து கவனம் இல்லாதபடிக்கு उस उद्धार के बारे में இன்னைக்கு चिंता வஞ்சித்துக் करना, கொண்டு இருக்கிறார். आज उसको बरमा रहा है। ஹalleluya हालेलुया, ஹalleluya. Hallelujah. ஆண்டவர் சொல்லுறாரு परमेश्वर कहता है ரட்சிப்பை குறித்து उद्धार के बारे में நாம் கவலையற்று இருப்போம் என்று சொன்னார். चिंता के बिना அவருடைய रहें, தண்டனைக்கு எப்படி நம்ம தப்பித்துக் கொள்ளுவோம்? उसके दंड से हम कैसे बच पाएंगे? ஹalleluya हालेलुया, ஹalleluya. हालेलुया। தேவனுடைய பிள்ளைகளே, परमेश्वर के लोगों, ஒருவேளை இந்த வசனம் एक बार ये वचन உங்களுடைய வாழ்க்கையில आपके जीवन में ஆண்டவர் பேசுவார் என்று சொன்னார், परमेश्वर बातें करेगा तो உங்களை மனம் திரும்ப கேட்டுக்கொள்ளுகிறேன். आप मन फिराने के लिए आपसे मैं आऊंगा। வாலிபனே, जवान வாலிப மகளே, जवान बेटी, உலக ஆபாசங்களுக்கும் संसार की कार्यों के, உலக இச்சைகளுக்கும் संसार की इच्छाओं के நீ அடிமைப்பட்டு கொண்டு இருக்கிறாயோ? उसमें आधीन हो रहा है क्या? நீ கவலை உன்னுடைய ரட்சிப்பை குறித்து கவலைத்து காணப்பட்டு கொண்டு இருக்கிறாயோ? उद्धार के बारे में तो चिंता रहित है क्या? இதுதான் வாழ்க்கை, यही जीवन, இதான் உலக வாழ்க்கை, यही संसार की இது வாழ்ந்தால் போதும் என்று சொல்லி நினைத்துக் கொண்டு இருக்கிறாயோ? इसे जिए तो काफी है करके सोच रहे हैं அவருடைய क्या? தண்டனைக்கு उसके दंड से எப்படி தப்பித்துக் கொள்வாய்? कैसे बच पाएंगे? எப்படி தப்பித்துக் கொள்ள முடியும்? कैसे बच पाएंगे? வேதம் சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது. शास्त्र में कहा गया है, ரோமர் 12ஆம் அதிகாரம் रोमियों का 12 अध्याय ஆனல் சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது. 11 में कहा गया है, நீங்கள் அசதியாயிராமல் आप लोग चिंता रहित ஜாக்கிரதையாயிருங்கள், जागरूक रहिए, ஆவியில அனலாயிருங்கள். आत्मा में जागरूक रहिए। எப்படி இருக்கணுமா? कैसा रहना है? நீங்க அசதியா இருக்க கூடாது, आप लोग निराश नहीं रहना है, ஜாக்கிரதையா இருக்க வேண்டும். जागरूक रहना है। அன்னையுடைய வாழ்க்கையில आज अनेकों के जीवन में அசதிகள், निराशपन, சோம்பேறிகள், आलसपन, ஜெபிக்க முடியவில்லை, प्रार्थना नहीं कर पाते, ஆமென், காலையில வேதத்தை படிக்க முடியவில்லை, सुबह उठकर शास्त्र पढ़ नहीं पाते, எப்ப பார்த்தாலும் தூக்கம். कभी भी देखे तो नींद, ஆமா, போன பண்ணா போன் அடிச்சிட்டு தான் இருக்கு, போன் எடுக்க வழி இல்ல. फोन किए तो फोन नहीं उठा पाते हैं, சோத்திரம், ஒரே தூக்கமா தான் இருக்கிறது. हमेशा नींद में रहते சில हैं। கண்ணை பாருங்க, लोगों की आंखें அப்படியே देखिए, கண்ணு அங்கங்க பட்டு தான் இருக்கும். ऐसी आंखें यहाँ वहाँ நம்மகிட்ட பேசிட்டு தான் இருப்பாங்க, हमसे बातें ஆனா करते கண்ணு रहेंगे, பரண்டு தூங்கிட்டே இருப்பான். लेकिन आप पीछे सोते रहेंगे। காலங்கள் மாறி இருக்கிறது. समय बदल रहा है, இன்னைக்கு சாத்தான் आज शैतान அநேகரை अनेक लोगों को நித்திரையின் ஆவினாலே ஆட்டி படைத்துக் கொண்டு இருக்கிறான். नींद की आत्मा से उन्हें बरमा रहा நாம் है। எச்சரிக்கை நம்ம வர வேண்டும். हमें जागरूक रहना है। ஹalleluya. हालेलुया। அப்பொழுதுதான் तब ही ஆத்துமாக்களை ஆதாயம் பண்ண முடியும். प्राणों को कमा पाएंगे। நம்முடைய ரட்சிப்பை குறித்து हमारे उद्धार के बारे நாம் में கவலையற்று இருப்போம் என்று अगर हम சொன்னார், चिंता रहित रहे, தண்டனைக்கு दंड से எப்படி தப்பித்துக் கொள்ள முடியும்? कैसे बच पाएंगे? சோம்பேறி சொல்லுவான், जो आलसपन करेंगे, பார்த்துக்கலாம், देखेंगे, திருமணம் முடியட்டும், विवाह होने दो, நானும் மனைவியும் हम में और पत्नी ஞானஸ்நானம் எடுப்போம். बत्तीस मारेंगे, திருமணம் முடியட்டும், विवाह होने दो, நானே மனைவியும் ரட்சிக்கப்படலாம். मैं और पत्नी उद्धार पाएंगे, திருமணம் முடிஞ்சிடும், विवाह हो जाएगा, ஆண்டவர் குழந்தையை கொடுப்பாரு. परमेश्वर बच्चे को भी देगा। அந்த ரட்சிப்பை குறித்ததான इस उद्धार के बारे में எண்ணமே இருக்காது. सोच भी नहीं रहेगा। ஹalleluya. हालेलुया। கடைசியோட ஆத்துமானது अंत में वो आत्मा அது நரகத்துக்குள்ளாக वो போய்விடும். नरक की ओर चली जाएगी। ஹalleluya. हालेलुया। அதனால தான் ஆண்டவர் சொல்லி இருக்கிறாரு, इसलिए परमेश्वर कहता है எல்லாவற்றும் முடிவு சமீபமா இருக்கிறது. सबका अंत समीप है, ஆகையால் इसलिए தெளிந்த புத்தியுள்ளவராயிருந்து अच्छे मन के साथ रह ஜெபம் பண்ணுவதற்கு प्रार्थना करने के लिए ஜாக்கிரதை உள்ளவராயிருங்கள். जागरूक रहिए। சொல்லுங்க, ஜெபத்தை உட்காருவாங்க, कुछ लोग प्रार्थना में बैठेंगे, அந்த சவுர்ல இருந்து ஒரு கொஞ்சம் பக்கத்து உட்கார்ந்து கொண்டு இருப்பாங்க. कुछ जो दीवार के बाजू में बैठे रहेंगे, சோத்ரம் சோத்ரம் ஜெபம்னுவாங்க. धन्यवाद धन्यवाद प्रार्थना கொஞ்ச करेंगे। நேரம் ஜெபம் பண்ண உடனே समय होने के बाद தூக்கம் வரும் பாத்தீங்களா? नींद आएगा, தூக்கம் வந்த உடனே नींद आते ही என்ன செய்வாங்க தெரியுமா? क्या करेंगे? அந்த தூக்கத்துல नींद में அது சோரிய முட்டி தள்ளிடுவாங்க. दीवार में ऐसी सर लड़ा देते हैं। பிரைஸ் அல்லாஹ். हालेलुया। இயேசு சொல்றாரு, यीशु कहता है ஜெபத்துல प्रार्थना में ஜாக்கிரதை உள்ளவரா இருக்க வேண்டும். जागरूक रहना है। ஹalleluya. हालेलुया। சில ஆட்கள் ஜெபித்துக் கொண்டே இருப்பாங்க, कुछ लोग प्रार्थना करते रहेंगे, பக்கத்துல கணவனும் மனைவி ஜெபித்துக் கொண்டே இருப்பாங்க. आज में पति और पत्नी प्रार्थना करते रहेंगे, ஜெபித்துக் கொண்ட சமயத்துல प्रार्थना के समय திடீர்னு பார்த்தா अचानक देखेंगे ஜெபித்துக் கொண்டு இருக்கிற கணவனா இருக்கலாம், प्रार्थना करने वाला पति हो सकता है மனைவியா இருக்கலாம், या पत्नी हो सकती மேலே है, விழுந்துருவாங்க. ऊपर गिर जाएंगे। பிரைஸ் அல்லாஹ். हालेलुया। ஹalleluya. हालेलुया। தூக்கம், नींद, ஜெபத்துல சோம்பல் प्रार्थना में आलसपन, அநேகரை இன்னைக்கு அது பிடித்து இருக்கிறது. अनेक लोगों को उसने இது पकड़ा है। சாத்தானுடைய ये தந்திரங்கள். शैतान का तंत्र அதை है। வேதம் சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது. वही शास्त्र में कहा गया है। சாத்தானின் தந்திரம் நமக்கு தெரியாதவைகள் அல்லவே. शैतान की तंत्र में नहीं पता है क्या? பிரைஸ் அல்லாஹ். हालेलुया। அதனால इसलिए ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளே, परमेश्वर के लोग நாம் சோம்பலுக்கு இடம் கொடுக்காமல் आलसपन को जगह न நாம் देते हुए சுறுசுறுப்பாக हम जागरूक होते தேவ हुए சமூகத்துல காணப்பட வேண்டும். परमेश्वर के सम्मुख में இயேசு रहेंगे। கிறிஸ்து பார்க்கும் பொழுது यीशु को देखते समय இயேசு
இயேசு எப்படிப்பட்ட ஜெபித்தார் தெரியுமா? यीशु प्रार्थना में कैसा அவர் किया? அதிகாலையிலே अधिक सुबह இருட்டோடு எழுந்து புறப்பட்டு अंधेरे के साथ उठकर வனாந்தரம் இடத்திற்கு போய் ஜெபம் பண்ணினார். जंगल के स्थानों में जाकर प्रार्थना किया। ஹalleluya हालेलुया। ஹalleluya. அது மாத்திரமல்ல, नहीं नहीं, அவர் ஜெபம் பண்ணும்படி वो प्रार्थना करने के ஒரு लिए மலை மேல் ஏறி एक पर्वत के ऊपर चढ़कर ராம் முழுவதும் रात पूरा தேவ நோக்கி ஜெபம் பண்ணி என்று சொல்லப்பட்டு वो இருக்கிறது. प्रार्थना किया करके हम पढ़ते हैं। கடைசியாக சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது. अंत में कहा गया है, லூக்கா 21:36 சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது. लूका 21वां अध्याय में कहा गया है, ஆகையால் இனி சம்பவிக்க போகிற இவைகளுக்கெல்லாம் நீங்கள் தப்பி மனுஷருக்கு முன்பாக நிற்க பாத்திரங்களாக எண்ணப்படுவதற்கு अब जो होने वाले कार्यों से बचकर मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े रहने के लिए எப்பொழுதும் हमेशा ஜெபத்திலே விழித்திருங்கள். प्रार्थना में जागरूक रहिए। ஹalleluya. हालेलुया। ஜெபத்திலே விழித்திருங்கள். प्रार्थना में जागरूक रहिए। ஜாக்கிரதையாயிருங்கள். जागरूक रहिए। சோம்பேறிகளா இருக்க கூடாது. आलसपन में ना रहे। சோம்பேறி வந்து आलस जो है அவன் கை வந்து उसके हाथ சம்பாதிக்க கூட அது பயன்படாதான். काम करने के लिए भी वो उपयोगी न இந்த रहेगा। வாழ்க்கை எப்படி இருக்கிறது? आपकी जीवन कैसी है? ரெண்டு காரியத்தை மாத்திரம் கர்த்தர் நம்மோடு பேசினார். दो कार्य केवल हमने देखा। உன்னுடைய தாளந்தை குறித்து நமக்கு ஜாக்கிரதை இருக்க एक வேண்டும். हमारे जो तोड़े हैं उसके बारे में जागरूक रहना। இரண்டாவதாக दूसरा, நம்முடைய ரட்சிப்பை குறித்து நம்ம ஜாக்கிரதையா இருக்க வேண்டும். हमारे उद्धार के बारे में हमें जागरूक रहना है। இதை இழந்து விடக்கூடாது. किसी को भी नहीं खोना है। தேவ சமூகத்திலே परमेश्वर के सम्मुख ஒருவேளை कोई समय இந்த ஒரு இப்படிப்பட்டதான காரியம் ஒரு வாழ்க்கையில் இருக்கும் என்று சொன்னார். इस प्रकार की कार्य आपके जीवन में रहेगा तो இன்றைக்கு आज ஒப்பு கொடுங்க. अर्पण कीजिए। இன்றைக்கு आज ஆண்டவரே சொல்லுங்க. परमेश्वर से कहिए, அவர் உங்களை உற்சாகமாக वो நிரப்புவார். आपको उत्साह की आत्मा से உங்களை அவர் भरेगा। பலப்படுத்துவார். वो आपको बल करेगा, மீண்டுமாக फिर से உங்களை உயிர்ப்பிப்பார். आपको जिलाएगा, எழும்பி பிரகாசிக்க வேண்டும்படியாக प्रकाशित होने के लिए உங்களுக்கு கிருபையை கொடுப்பார். आपको अनुग्रह देगा। இப்பொழுது நாம ஜெபிக்கலாமா? अभी हम प्रार्थना करेंगे। தேவ சமூகத்திலே ஜெபிக்கலாமா? परमेश्वर के सम्मुख में प्रार्थना करेंगे। ஜெபிக்க முன்பதாக प्रार्थना के पहले ஒரு சாட்சி சொல்லி एक गवाही को நான் बताता உங்களுக்கு எல்லாம் நம்ம ஜெபிக்க போறேன். आपके लिए प्रार्थना करेंगे। சரியா? கர்த்தர் நல்லவர். परमेश्वर अच्छा है, நம்முடைய ஜெபத்தை அவர் கேட்டே हमारे இருக்கிறார். पर प्रार्थना को सुनता நான் है। கடந்த நாட்களில पिछले दिनों में அறிவிப்பு கொடுத்திருந்தேன். हमने कहा था யாருக்காவது சாட்சி சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னார். अगर किसी को गवाही बताना है நீங்க तो போன் மூலமாகவோ आप लोग फोन के द्वारा எஸ்எம்எஸ் மூலமாகவோ या एसएमएस के द्वारा எங்களுக்கு தெரியப்படுத்த சொல்லி இருந்தேன். हमें बताइए। हमने कहा ஒரு சாட்சியை நான் வாசிக்கிறேன். मैं गवाही को पढ़ते हैं। என்னுடைய பேர் லீலா. मेरा नाम लीला, நான் தமல்ல வசிக்கிறேன். हम दमन में रहते हैं। என்னுடைய குடும்பத்துல சமாதானம் இல்லாமல் கடந்த நாட்கள் நாங்கள் காணப்பட்டிருந்தோம். हमारे परिवार में समाधान के बिना हम पिछले दिनों में அது थे। மாத்திரமல்ல, इतना ही नहीं, காலில் நீர் இருந்தபடினால पैर में जो पानी का प्रॉब्लम था, इसलिए கால் வீக்கம் இருந்தது. पैर में सूजन था। ஊழியக்காரனை ஜெபிக்கும்படியாக கேட்டுக்கொண்டேன். सेवक से प्रार्थना करने के लिए कहा, அவர்களும் எனக்காக वो ஜெபித்தார்கள். भी हमारे लिए प्रार्थना किए। என்னுடைய குடும்பத்துக்காகவும் ஜெபித்தார்கள். हमारे परिवार के लिए प्रार्थना என்னுடைய किए। குடும்பத்திற்கு हमारे परिवार के ஆண்டவர் சமாதானத்தையும் परमेश्वर समाधान அவர் சந்தோஷத்தை கொடுத்திருக்கிறார். और आनंद दिया है। அது மாத்திரமல்ல, इतना ही नहीं, இந்த காலில் இருக்கிற வீக்கம் முற்றிலுமாக மாறி पैर की सूजन पूरी रीति से ஆண்டவர் चला। விடுதலை கொடுத்து சாட்சிகள் இருக்கிறார்கள். परमेश्वर ने छुटकारा दिया है। கர்த்ததாமே परमेश्वर की இந்த அருமையான குடும்பத்தை इस अच्छे परिवार को அவர் ஆசீர்வதிப்பாராக. आशीष करे। உங்களுக்கு ஏதாவது சாட்சிகள் இருந்தால் और आपको भी कुछ गवाही होती है, நீங்களுக்கு தெரியப்படுத்தலாம். आप भी हमें बता सकते हैं। நீங்கள் சொல்ல சாட்சி மூலமாக आप जो गवाही बताते हैं, மற்ற ஜனங்கள் दूसरे लोग தேவன் விசுவாசம் வைப்பார்கள். परमेश्वर के प्रति विश्वास और बढ़ेगा। அவர்கள் வாழ்க்கையில उनका जीवन ஆண்டவர் அற்புதம் செய்வார். परमेश्वर अद्भुत நான் करेगा। ஜெபிக்கிறேன். हम प्रार्थना करें। நல்ல தகப்பனே உமக்கு ஸ்தோத்திரம். अच्छे परमेश्वर आपका இந்த धन्यवाद। அருமையான வேலைக்காக உமக்கு நன்றி इस ஆண்டவரே. अच्छे समय के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। எங்களோடு இன்றைக்கு பேசி இருக்கிறேன். आप हमसे आज बातें किए இந்த हैं। வார்த்தை எங்களை உயிர்ப்பித்து இருக்கிறது ஆண்டவரே. आपके वचन हमें जिलाया है இந்த வாழ்க்கையில हमारे जीवन में। எசப்பா எங்களுக்கு கொடுத்த தாளந்தை குறித்து, यीशु हमें दिया हुआ जो तोड़े के बारे எங்களுக்கு में, எங்களுக்கு கொடுத்த ஊழியத்தை குறித்து हमें दिया हुआ जो सेवकाई के बारे நாங்கள் में, கவனமா இருக்கும்படியாக हमें जागरूक रहने के लिए, ஆண்டவர் எங்களுக்கு கிருபை தர வேண்டும் என்று நாங்கள் हमें ஜெபிக்கிறோம். अनुग्रह देने के लिए हम प्रार्थना அது करते हैं। மாத்திரமல்ல, इतना ही नहीं, ரட்சிப்பை குறித்து நாங்கள் கவலையற்றிருப்போம் என்று சொன்னார். उद्धार के बारे में अगर हम चिंता रहित எப்படி रहे, அதை தப்பித்துக் கொள்ள முடியும்? कैसे हम उससे बच पाएंगे? ஆண்டவர் ரட்சிப்பை குறித்துதான उस उद्धार के बारे ஒரு में கவலை, एक चिंता, ஒரு ஜாக்கிரதை एक जागरूक இந்த வாழ்க்கையில போடும்படியாக हमारे जीवन में आप देने के लिए ஜெபிக்கிறோம் என்று நாம ஜெபிக்கலாம். प्रार्थना करते हैं। ஆண்டவருடைய ஜெபத்தை அவர் கேட்டுக்கொண்டே परमेश्वर இருக்கிறார். आपकी प्रार्थना को உடைய सुनता பிள்ளையுடைய है। வாழ்க்கையில आपके बच्चों की जीवन ஏதாவது में சோம்பல் இருந்தா, कोई आलसपन हो तो, ஏதாவது சோதராண்டவர் வியாதிகள் இருந்தா, कोई बीमारी हो तो, இயேசுவின் நாமத்தினால यीशु मसीह के नाम से சோம்பலின் ஆவிகள், आलसपन की आत्मा, சோதர எல்லா வியாதியை கொண்டு வர பொல்லாத ஆவிகள், बीमारी की दुष्ट आत्मा, அசதியை கொண்டு வர ஆவிகள், आलसपन लाने वाली आत्मा, தூக்கத்தை கொண்டு வர ஆவிகள் नींद लाने वाली आत्मा, இயேசுவின் நாமத்தினால यीशु के नाम से நிர்மலமாக்கும்படியாக अर्पण करने के அவருடைய लिए கூடாரத்திலிருந்து उसके तंबुओं
அவருடைய பெட்ரூம்ல இருந்து के बेडरूम से இயேசுவின் நாமத்தினால यीशु के नाम से நிர்மலமாக்கி நான் ஜெபிக்கிறேன். अर्पण करके हम प्रार्थना அவருடைய करते हैं। அறைக்குள்ளாக उनके घरों में தேவ வல்லமை இறங்கட்டும். परमेश्वर की सामत उतरे, தேவ பாதுகாப்பு இறங்கட்டும். परमेश्वर की सुरक्षा उतरे, ஒரு ஒளி, एक जो उसका जो प्रकाश, ஒரு அற்புதம் एक अद्भुत அவருடைய வீடுகளிலே उनके घरों में நிகழ பண்ணும்படியாக रहने ஜெபிக்கிறேன். के लिए हम प्रार्थना करते இயேசுவின் हैं। நாமத்தில விடுதலை, यीशु के नाम से छुटकारा, இயேசுவின் நாமத்தில அற்புதம் यीशु के नाम से अद्भुत। இன்றைக்கு நீ கட்டளையிடும்படியாக ஜெபிக்கிறேன். आज आप आज्ञा देने के लिए हम பிள்ளைகளை प्रार्थना करते हैं। உயிர்ப்பிப்பீராக, बच्चों को आप जिलाइए, வாலிபர்களை ரட்சிப்பீராக, जवानों को उद्धार दीजिए, சிறு டீனேஜ் பிள்ளைகளை ரட்சிப்பீராக, टीनेज बच्चों को उद्धार दीजिए, சிறுவர் ரட்சிப்பீராக, छोटे बच्चों को उद्धार दीजिए, ரட்சிக்கப்படாத उद्धार न पाए பெரியவர்கள் बड़ों को எல்லாரையும் ரட்சிக்கும்படியாக सबको ஜெபிக்கிறேன். उद्धार करने के लिए हम அதே प्रार्थना குறித்து करते हैं। கவனத்தை கொடுங்கப்பா. इनके बारे में उनको ज्ञान அதே दीजिए, குறித்து தான் எண்ணத்தை பிள்ளைகளுக்கு போடும்படியாக நாங்கள் उसके ஜெபிக்கிறோம். बारे में एक सोच आपके बच्चों के जीवन में डालने के लिए எல்லாரும் प्रार्थना ஆசீர்வதிங்க. करते हैं। सबको आशीष कीजिए, எப்பொழுதும் ஜெபிக்கத்தக்கதாக, हमेशा प्रार्थना करें, விழித்திருந்து ஜெபிக்கத்தக்கதாக, जागरूक के साथ प्रार्थना करें, ஜெபாவினால प्रार्थना की आप நிரப்பும்படியாக आप ஜெபிக்கிறேன். भरने के लिए हम प्रार्थना करते அவருடைய हैं, தேவைகளுக்காக ஜெபிக்கிறேன். उनकी जरूरत के लिए हम प्रार्थना பண करते हैं, தேவையில இன்றைக்கு இருக்கலாம், पैसों की जरूरत हो सकती है, ஏதோ ஒரு காரியத்துல இன்றைக்கு அந்த தேவையில இருக்கலாம். कोई एक कार्य में जरूरत हो सकती எல்லா है, தேவையை சந்தித்து கொடுக்கும்படியாக सारी ஜெபிக்கிறேன். जरूरतों को पूरा करके குடும்பத்துல दीजिए, சமாதான கட்டளையிடுவீராக, परिवार में समाधान दीजिए, ஆசீர்வாதத்தை கட்டளையிடுவீராக. आशीष दीजिए, உடைய கிருபை பிள்ளைகளை தாங்கும்படியாக आपके ஜெபிக்கிறேன். अनुग्रह बच्चों को संभालने के लिए हम சீக்கிர प्रार्थना சபைகள் திறக்கட்டும். करते हैं। शीघ्र कलीसिया को खुलने दें, நாங்க இணைந்து ஆராதிக்க हम मिलकर आराधना உடைய करें, கிருபை தரும்படியாக ஜெபிக்கிறேன். अनुग्रह देने के लिए हम प्रार्थना இந்தியா करते தேசத்துல हैं। भारत देश ஒரு में அக்கினியை போடுங்க, एक अग्नि को दान ஒரு दीजिए, எழுப்புதல் வரட்டையா. एक रिहाई आने இந்த दो, கொரோனா வைரஸ் एक कोरोना वायरस இயேசுவின் நாமத்தினால यीशु के नाम அது से நாங்க போகும்படியாக और जाने के लिए கட்டளையிடுகிறோம். आज्ञा देते எங்க हैं। ஜனங்கள் எல்லாரையும் பாதுகாத்துக் हमारे கொள்ளுங்க. लोगों को सुरक्षा எங்க कीजिए, தலைவர்களை பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்க. हमारे लीडर्स को रक्षा कीजिए, தேவகரம் தொடர்ந்து இருக்கட்டும். परमेश्वर का हाथ இந்த लगातार மகாராஷ்டிர மாநிலத்துல इस महाराष्ट्र के ஒரு राज्य எழுப்புதல் में வரட்டும். एक बड़ी रिहाई இந்த आने दो, தானா மாவட்டத்துல हमारे थाने ஒரு राज्य में எழுப்புதல் வரட்டும். एक रिहाई आने எங்களை दो, வைத்த நோக்கம் என்னையா? हमें रखा हुआ जो इच्छा இந்த தானா மாவட்டத்துல इस थाना शहर சபை में கொடுத்திருக்கிறீரே, कलीसिया हमें दिए हैं, அது நோக்கம் என்ன? उसकी जो चाहत எங்க है, சபை हमारी कलीसिया அசதியா இருந்துடக்கூடாது. आलसपन में ना रहना, சபை ஜாக்கிரதையா இருக்கத்தக்கதாக जागरूक से रहने இந்த के लिए பிள்ளைகளுக்குள்ளாக हमारे लोगों के ஜபாவி बीच ஊற்றுவீராக, प्रार्थना की आत्मा को उंडेल दीजिए, உற்சாகமனாவி ஊற்றுவீராக. उत्साह की आत्मा को उंडेल दीजिए, தேவபலன் தாங்கட்டும். परमेश्वर का बल रहे, சிறியோர் முதல் छोटों से लेकर பெரியோர் வரைக்கும் बड़ों तक எல்லாரும் ஆசீர்வதியும். सबको आशीष कीजिए। வருகிற புதிய மாசத்துல आने वाले नए महीने நல்ல में மங்களமான காரியங்கள் நடக்கட்டும். अच्छे नए कार्य उनके जीवन நல்ல में காரியங்கள் செய்யட்டும். अच्छे कार्य हो, புதிய காரியத்தை செய்யுங்க. नए कार्य हो, அது ரட்சிக்கப்படட்டும். आप उद्धार ஒரு कीजिए, பாவி ரட்சிக்கப்பட்டா एक पापी उद्धार पाए, பரலோகத்துல स्वर्ग में மிகுந்த சந்தோஷம் உண்டாயிருக்குமே. बहुत ही आनंद होता है, குடும்பத்தில் பிள்ளை ரட்சிக்கப்படும்படியாக செபிங்க. परिवार में उद्धार पाने के लिए படிக்கிற प्रार्थना பிள்ளை ஆசீர்வதிங்க. करें। पढ़ाई वाले बच्चों को आशीष दीजिए, ஞானத்தை கொடுங்க. ज्ञान दीजिए, எல்லாத்தையும் சந்தித்து கொடுக்கும்படியாக सारी செபிக்கிறேன். जरूरतों को पूरा करके दीजिए, தாழ்த்துகிறோம். अर्पण करते हैं, ஆசீர்வதியும். आशीष कीजिए, இயேசுவின் மூலம் ஜெபம் நல்ல பிதாவே. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, ஆமென். आमीन। என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழுவதுமே பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, அவர் செய்த சகல உபகாரங்களை மறவாதே. ஆமென். ये मेरे मन यहोवा को धन्य कर, ये मेरे मन, उसके पवित्र नाम को धन्य कर, ये मेरे मन यहोवा को धन्य कर, उसने केवल सारों का तो कभी ना भूलना. आमेन. நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் हमारे ईश्वर का अनुग्रह, பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் पिता का प्यार, பரிசுத்தாவின் ஐக்கியமும் पवित्र आत्मा का सहभागिता நம்மோடு கூட हमारे साथ, உலகத்தில் உள்ள பரிசுத்தவான்களோடு கூட संसार के हर एक पवित्र लोग के साथ என்றென்றைக்கும் இருப்பதாக. हमेशा रहे। ஆமென். आमेन। ஹalleluya. हालेलुया, ஹalleluya. हालेलुया। God bless you. God bless you। கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பாராக. எல்லாருக்கும் சோதனை. Praise the Lord.